Hey guys, welcome back once again to the channel Embrace IAS. So from now today onwards, we are going to start our majority portion of the current affairs, that is the Vision IAS magazine. As promised, we have delivered the Yojana June 2023 magazine. I hope you might have visited that video. If not, just go back and watch it out. आज से एक majority portion of current affairs we are going to start, and this is one of the magazines that we will be following. It will be the Vision IAS magazine. Proceeding further, let me introduce you. Okay, wait for a second. See, there's a short request from your from our side that today here there's a little bit of construction work going on. So I'll try my best that I will manage it with my sound levels. But if at all there's some obstruction in the sound or is there some external noise that you're hearing, please bear with it, guys, because there's construction work going on and I cannot help it out. Okay. So coming on to our methodology, we have decided that first we'll be discussing the entire magazine, and this magazine will be completed in 3 to 4 days period, right? In 3 to 4 videos, we'll be completing it. Then after once we are completed with the magazine, see, this is a 130 page document. Okay. We'll be reducing it for you to 15 to 20 pages. And these will be a kind of one pages which will have the summary of each the topics included in this magazine. Alongside it, we will also have some extra points that you would need for your prelims or the mains examination, right? Now, apart from this, see, this 15 to 20 page document will be uploaded on our Telegram handle. You might be knowing it. If not, go to the description of this video and you will find that handle. Do go and join it, because all the important documents related to the classes are shared on this platform, right? Moving on further, अगर इस document पे जो 15 to 20 page like one page document, one page kind of document we are providing, अगर इस document पे you will need a detailed explanation that I should illustrate in the class how we should proceed with this document. So I will be arranging a separate class for that purpose. Otherwise, but this will be only on demand. If you will comment that you want a class on this 15 to 20 page document also, then I will be uploading a class for the same, right? Then apart from this, this initiative, we will also be conducting prelims PYQs and mains PYQ sessions based on the each month's magazines, right? We'll be solving these PYQs in class and showing you the interrelations, how the questions from current affairs are framed, amalgamating it with the static portions. Okay, so this will be our methodology. Proceeding further, आज का agenda है हमारा economy and schemes. Okay, why economy? So economy is a section which is highly important on this part of current affairs, as well as it is a section which is highly like the most complex section of this magazine, which is not possible to be dealt with on your own. ठीक है, तो इसीलिए इकोनॉमी से स्टार्ट करेंगे. पहला टॉपिक है हमारा स्टेट्स कैपिटल एक्सपेंडिचर. See, one more disclaimer. There are certain points which are important from your static perspective and which cannot be explained in this video, because you will see towards the end already this video is very lengthy one. तो हर एक static concept अगर समझाने बैठ जाएंगे तो it will take around 3 to 4 hours in a single video. Okay, no one is going to watch it. It's going to be monotonous for you. So to prevent that monotony, we'll be doing what we will be doing is I will be explaining each of these static terms in very layman language. Okay, because it is needed to be explained क्योंकि जो नए बच्चे हैं they require that they know at least some background of these current affairs, तभी उनको वो current affairs का context समझ में आएगा, right? So proceeding further, in very layman terms, I will be describing these static terms. Baki, when I will be dealing with your economy static classes, I will be teaching each and every topic in detail, right? Magazine के लिए जितना important है, I'll be dealing over there. So capital expenditures. See, government has certain amount of expenditures, which खर्चे होते हैं government के, and these expenditures are divided into revenue expenditure and the capital expenditure. Okay, when we talk about capital expenditure के लिए आपको दो conditions याद रखनी है. Any expenditure to qualify as a capital expenditure, you will need two things. Number one, it should create a permanent asset for the government. And number two, it should bring a regular income source to the government. Regular income source to the government. Okay?
जब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर पे आते हैं तो ये इसी का उल्टा हो जाता है, ये किसी एसेट को डिग्रेड कर रहा होता है, डिग्रेडिंग एन एग्जिस्टिंग एसेट ऑफ द गवर्नमेंट एंड इंक्रीजिंग लायबिलिटीज ऑफ द गवर्नमेंट, मतलब पैसा गवर्नमेंट को रेगुलरली आने की जगह गवर्नमेंट की पॉकेट से रेगुलर एक्सपेंडिचर्स जा रहे होते हैं, ठीक है. So that is a revenue expenditure. This is a capital expenditure. In very layman terms, these are the definitions. तो इसका मतलब क्या हुआ कि revenue expenditure is a negative kind of expenditure and capital expenditure is a positive kind of expenditure. इसीलिए any kind of news you would be seeing, government would be trying to promote this kind of expenditure and degrade this kind of expenditure. Okay. तो यही है इस न्यूज में भी. द डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस हैज अप्रूव्ड capital investment proposals of 56,000 crores in 16 states under the scheme entitled Special Assistance to States for Capital Investment 2023-24. देख लेते हैं क्या है ये स्कीम. इस स्कीम के अंडर में डिपार्टमेंट ऑफ expenditure under the Ministry of Finance has approved a budget of ₹56,000 crores for 16 states. स्कीम बेसिकली ये लाई गई थी कोविड-19 पैंडेमिक के वेव में, जबकि स्टेट्स वर इन लॉसेस, ठीक है. टू कवर अप दोज लॉसेस ये स्कीम लाई गई थी और अब इट इज एक्सटेंडेड टू नॉर्मल टेन्योर, ठीक. तो इसी के अंडर में ये अमाउंट सैंक्शन हुआ. ऑब्जेक्टिव क्या होता है? ऑब्जेक्टिव है दी हायर मल्टीप्लायर इफेक्ट ऑफ द कैपिटल एक्सपेंडिचर. देखो मल्टीप्लायर इफेक्ट हम किसे कहते हैं? व्हेन वी आर इन्वेस्टिंग मनी इन अ सिंगल सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी एंड दैट इज लीडिंग टू द ओवरऑल जीडीपी ग्रोथ, या दैट इज लीडिंग टू मल्टीपल ग्रोथ इन द डिफरेंट सेक्टर्स, दैट गिव्स राइज टू अ मल्टीप्लायर इफेक्ट. ओके. अब मल्टीप्लायर इफेक्ट को समझने के लिए लेट्स सी हाउ दिस कैपिटल एक्सपेंडिचर विल प्रमोट मल्टीप्लायर इफेक्ट. तो एक फ्लो चार्ट से समझते हैं. This is your capex. ठीक. कैपिटल एक्सपेंडिचर विल लीड टू जॉब क्रिएशंस. कोई भी आप इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड कर रहे हो, जॉब क्रिएशंस होंगे, ठीक. जॉब क्रिएशंस क्या करेंगे? इट विल इंक्रीज योर परचेजिंग पावर पैरिटी, राइट. इनिशियली इफ यू वर अर्निंग 100 rupees, you were spending 20 rupees out of it and you were saving 80 rupees. Or take it to the other side, you were spending 80 rupees out of it and you were saving 20 rupees. Now when you are earning 1,000 rupees, now even if you are saving 800 rupees, you are your spending is 200 rupees, much larger than the previous spending. So when your purchasing power will increase, your spending will increase. When spending in economy increases, what is increased in exchange is the demand is increased. When demand increases, then the economics rule applies and demand will create its own supply. So demand increases, in exchange what increases is the supply. Supply will increase, this will create further infrastructure. Why? Because to fulfill this supply, you will need some amount of infrastructural capabilities and these will again create jobs. So this is a virtuous cycle that will go on from the capex. ठीक है. यही रीजन है कि हम capex को इतना प्रमोट करते हैं. मल्टीप्लायर इफेक्ट होता है, right. Then moving on further under the scheme, now this all this is not important. The only important thing is it is a 50-year interest-free loan to the state governments. 50 साल के लिए एक तरह का लोन दे रही है सेंट्रल गवर्नमेंट to the state governments, which the state governments had to pay back after 50 years. But again, there is no interest amount applicable on it. ठीक है, ये important part है. फिर नेक्स्ट पार्ट हम देखेंगे. 8 पार्ट्स हैं इसके. पार्ट 1 जो है वो की लार्जेस्ट कॉर्पस ऑफ फंड है, वो मिलता है इन प्रोपोर्शन टू देयर शेयर ऑफ सेंट्रल टैक्सेस एंड ड्यूटीज एज पर द अवार्ड ऑफ 15th फाइनेंस कमीशन. तो देखो फाइनेंस कमीशन एक बॉडी है विच इज सेट अप फॉर द फिस्कल प्रूडेंस, राइट, फॉर द फिस्कल एथिक्स, फॉर एस्टैब्लिशिंग फिस्कल मोरालिटी. नाउ एज रिगार्ड्स दिस फाइनेंस कमीशन, it has a duty of allocating shares to the central shares to the state government out of the central pool of taxes. ठीक है. वो shares कैसे जाने हैं state government को, in what ratio it has to go, what are the parameters on which these states are divided in respect of the central pool of taxes of funds. ठीक है. ये सारा डिसाइड करती है फाइनेंस कमीशन. अब फाइनेंस कमीशन ये सारी जो इंफॉर्मेशन है या ये सारी जो गाइडलाइंस हैं ये प्रोवाइड करती है टू दी सेंट्रल गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट वहां से फंड्स रिलीज करती है फॉर दी स्टेट गवर्नमेंट. तो
हर स्टेट का जितना शेयर है सेंट्रल पूल ऑफ टैक्सेस पे, उसके बेसिस पे इनको फेज 1 के अंडर में या पार्ट 1 के अंडर में फंड्स मिलते हैं, इसीलिए ये लार्जेस्ट कॉर्पस ऑफ फंड है। बाकी जो पार्ट 2 टू पार्ट 8 है, उनके अंदर आपको सेक्टर स्पेसिफिक या रिफॉर्म्स रिलेटेड फंड मिलते हैं। ठीक है, ये हैं सारे पार्ट्स, यू कैन हैव अ रीडिंग ओवर इट, बट इट्स नॉट एट ऑल इम्पोर्टेंट फॉर यू। ठीक, आपको बस इतना याद रखना है, पार्ट 2 टू 8 इज सेक्टर स्पेसिफिक और रिफॉर्म्स लिंक्ड। अब देख लेते हैं व्हाट हैव बीन द ट्रेंड्स इन कैपिटल एक्सपेंडिचर इन प्रीवियस टाइम्स। हायर सब्सिडीज एंड कैपिटल स्पेंडिंग इज स्लोड। तो गवर्नमेंट ज्यादा कहाँ स्पेंड कर रही है? सब्सिडीज पे। सब्सिडीज क्या करती है? गवर्नमेंट के एसेट्स को ड्रेन कर रही होती है। तो ये किस टाइप का एक्सपेंडिचर हुआ? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हाई है और आपका केपेक्स या कैपिटल एक्सपेंडिचर आपका लो है। ठीक है, then coming on to next point is capital outlay to GDP ratio. See again, don't get worried by these technical terms. You don't have to understand much in it. जब स्टैटिक पढ़ेंगे तब देखेंगे इन डिटेल क्या है। अभी फिलहाल डू इट विद वर्ड प्ले। कैपिटल आउटले टू जीडीपी, जितना भी कैपिटल आउटले है उससे कितना जीडीपी ग्रोथ हो रहा है। ठीक, राइट। तो कैपिटल आउटले ऑफ द ईयर इज अफेक्टिंग 2.3% ऑफ जीडीपी ग्रोथ, या इज कॉजिंग 2.3% ऑफ जीडीपी ग्रोथ। ये होता है कैपिटल आउटले टू जीडीपी रेशियो। मींस एक सर्टेन अमाउंट ऑफ कैपिटल, कितना अमाउंट ऑफ कैपिटल अप्लाई करने पर आप कितनी जीडीपी ग्रोथ कर रहे हो, दैट इज capital outlay to GDP growth. So presently 2.3% है, it is expected to rise up to 2.9% in further years. Then coming on to debt to GDP ratio. Debt to GDP ratio shows the total amount of accumulated debt that state has. ठीक है, total accumulated debt that is due on that state becomes its debt to GDP ratio. जितना ज्यादा debt to GDP ratio होगा उतना ही वो state नेगेटिवली अफेक्टेड होगा। वाई? बिकॉज उसका हाई डेप्ट होता है, और जितना कम डेप्ट होगा उतना ज्यादा डेप्ट टू जीडीपी रेशियो होगा, उतना ही दैट स्टेट विल बी पॉजिटिवली अफेक्टेड बिकॉज उसके पास केपेक्स के लिए अमाउंट बचता है। ठीक है, कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए। Then next is capex target. This is one of the positive news that a study by Bank of Baroda says that 25 states have cumulatively achieved 76% of their capex target in financial year 2023. Right? Nothing to explain over here. Now coming on to significance of capex by the states. Why is capex significant? First is multiplier effect. I've already told you what's it all about. Then the second point is, this is an important point क्योंकि देखो prelims में भी such kind of questions are framed where they ask कि सेंट्रल गवर्नमेंट का केपेक्स जो है वो की सेंट्रल गवर्नमेंट का जो केपेक्स है वो स्टेट गवर्नमेंट्स के कंबाइंड केपेक्स से बड़ा होता है या कम होता है। राइट, सो दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस हैव बीन आस्क्ड, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस इन द प्रीलिम्स, इसीलिए ये पॉइंट थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो स्टेट्स का जो कंबाइंड केपेक्स है, कैपिटल एक्सपेंडिचर है, वो सेंट्रल के अकेले कैपिटल एक्सपेंडिचर से अमाउंट में काफी बड़ा होता है। सेंट्रल का अलोन द कैपिटल एक्सपेंडिचर इज ऑफ रुपीज 8.4 ट्रिलियन, लेकिन सारे स्टेट्स का कंबाइंड कैपिटल एक्सपेंडिचर है रुपीज 10.5 ट्रिलियन। ठीक है, सो दिस इज मच लार्जर देन द सेंटर्स अलोन कैपिटल एक्सपेंडिचर। राइट, तो इसीलिए स्टेट्स के कैपिटल एक्सपेंडिचर पे वी नीड अ मोर enhanced focus. Then next is about the future growth. They contribute to future economic growth. अब definite है, अगर पब्लिक की परचेजिंग पावर पैरिटी बढ़ रही है, स्पेंडिंग बढ़ रही है, तो इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ेगी। फिर आते हैं इंक्लूसिव ग्रोथ। इंक्लूसिव ग्रोथ इज अ कॉन्सेप्ट विच सेज दैट द ग्रोथ बेनिफिट्स शुड रीच टू द लास्ट पर्सन ऑफ द क्यू। ठीक है, टू द लास्ट पर्सन ऑफ द क्यू द ग्रोथ बेनिफिट्स शुड रीच। Inclusive growth and sustainable development, दोनों के concepts I have taught in depth when I have conducted the Yojana sessions. If you haven't visited it, just go back and see to them. You'll understand more better what are the concepts of inclusive growth and sustainable development. Then positive impact on other states. ये थोड़ा सा important point है. How the capex on one state is going to have positive externalities on other states. That is a point that needs to be proven. See, certain states are sandwiched between two states. Like take an example of Chhattisgarh. Chhattisgarh is sandwiched between Madhya Pradesh in the west and Odisha in the east. Right? So any kind of infrastructural development that is taken up in Chhattisgarh, what will it have an positive effect is that any kind of roadways development or any kind of railways development or any kind of waterways development
right? Any kind of transportation development in the region of Chhattisgarh is going to positively affect both the Madhya Pradesh and Odisha. Why? Because it is going to affect the connectivity between Madhya Pradesh and Odisha, right? So this is how positive impact it has an overthrowing impact on other states also, right? आ जाते हैं दूसरे पॉइंट पे. Now why despite being this much of significant, states lack on their capacity of capital expenditure. Why do they lack? Number one point is your limited fiscal space. देखो यहाँ एक एक्ट आया, the FRBM Act. FRBM Act का काम क्या होता है? इसको टारगेट सेट करने होते हैं गवर्नमेंट के लिए ऑफ देयर डेफिसिट्स. ठीक, इसको डेफिसिट्स को कंट्रोल में रखना होता है. डेफिसिट्स मतलब गवर्नमेंट को कितने घाटे हो रहे हैं, राइट, कितना लॉस हो रहा है. In very layman terms, it is what is a deficit. When we study static, we will get to know that deficits are of different types. It's fiscal deficit, revenue deficit, budgetary deficit, non-budgetary deficits. These are different terminologies we'll be studying in static. Don't worry. फिलहाल के लिए it's important to know that deficit means the losses that the government is bearing. ठीक है, कितना घाटा हो रहा है गवर्नमेंट को, that is the deficit. तो अब जब हम ये deficits को लिमिट करता है, राइट, तो डेफिसिट्स को लिमिट करने के लिए गवर्नमेंट के लिए कुछ टारगेट सेट करता है. रेवेन्यू डेफिसिट के कुछ टारगेट सेट करता है, फिस्कल डेफिसिट के कुछ टारगेट सेट करता है. गवर्नमेंट को ये टारगेट्स ब्रीच नहीं करने होते हैं. गवर्नमेंट इज लीगली बाउंड अंडर FRBM एक्ट टू फॉलो दीज टारगेट्स. ठीक है, तो दिक्कत क्या आ जाती है स्टेट्स के आगे जब FRBM टारगेट्स रखा जाता है. अब स्टेट्स हैव पॉसिटी ऑफ रिसोर्सेज. Now, in these paucity of resources, they have to fulfill these FRBM targets. Now, while fulfilling these FRBM targets, they have to cut on their expenditures. Ab expenditures, I have previously told you, it's about revenue expenditure as well as capital expenditure. Capital expenditure होता है जो कि एक positive expenditure है because it is adding on to your assets. But revenue expenditure is a negative expenditure. Why? Because it is degrading your assets. ठीक, लेकिन होता क्या है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स आर सम ऑफ द एक्सपेंडिचर्स व्हिच द स्टेट कैन नॉट कट ऑफ. क्योंकि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स में आती हैं द सैलरीज ऑफ द स्टेट ऑफिशियल्स, द पेंशंस पेड टू द रिटायर्ड ऑफिशियल्स एंड द सब्सिडीज. ठीक है, दीज आर सम ऑफ द रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स. तो ये ऐसे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स होते हैं जिन पे गवर्नमेंट कट ऑफ नहीं कर सकती. अब क्योंकि उसे FRBM टारगेट मीट करना है और कोई ना कोई उसे अपना एक्सपेंडिचर कट ऑफ करना है, तो दे एंड अप कटिंग ऑफ देयर कैपिटल एक्सपेंडिचर. ठीक है, सो दिस रिजल्ट्स इन रिड्यूसिंग देयर लिमिट्स ऑफ स्पेंडिंग ऑन कैपिटल जनरेशन, राइट. सो लिमिटेड फिस्कल स्पेस इज वन ऑफ द हिंड्रेंस टू द स्टेट्स टू स्पेंड ऑन केपेक्स. दूसरी चीज आती है लैगिंग कैपेसिटी. वी नो ईच स्टेट इज डिफरेंट जियोग्राफिकली, पॉलिटिकली एज वेल एज इकोनॉमिकली. हर स्टेट के पास उतनी कैपेसिटी नहीं होती है कि वो एक हाई अमाउंट ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर को एब्सॉर्ब कर सके. एवरी स्टेट डज नॉट हैव अनऑर्गेनाइज्ड लेबर to absorb large amount of capital expenditure on a low wage industry. ठीक है, हर स्टेट के पास उतनी स्किल्ड लेबर नहीं होती कि वो एक IT इंडस्ट्री का हाई कैपिटल एक्सपेंडिचर अफोर्ड कर सके. ठीक है, तो डिफरेंशियल कैपेसिटीज की वजह से डिफरेंट स्टेट्स का डिफरेंट केपेक्स लेवल होता है. फिर थर्ड पॉइंट आता है पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी. सी, स्टेट्स आर द मोस्ट पॉलिटिकली इंस्टेबल यूनिट्स यू कैन से. व्हाई? बिकॉज पहली चीज तो 5 ईयर इलेक्शंस, राइट. बट दूसरी चीज जो इम्पोर्टेंट होती है दैट इज रिगार्डिंग पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी. क्योंकि अगर कोई कोalition गवर्नमेंट होती है तो इन मिड ऑफ द गवर्नमेंट सम अदर मेजॉरिटी पार्टी विंस ओवर इट एंड रिमूव्स दिस कोalition गवर्नमेंट. ठीक, तो ये जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी होती है ये क्या होती है, ये पब्लिक पॉलिसी को बहुत लार्जली अफेक्ट कर देती है. एंड सेकेंडली आर द इलेक्शंस. इलेक्शंस आर अ काइंड ऑफ 5 ईयर प्लान. ठीक, और जो कैपिटल एक्सपेंडिचर के जो प्लान्स होते हैं ये लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स होते हैं. तो अब किसी एक गवर्नमेंट ने इनिशिएट कर दिया एंड द नेक्स्ट गवर्नमेंट हैज पुट इट इनटू अ कोल्ड स्टोर, तो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर वाले जो प्लान्स होते हैं वो पूरा एक्सपेंडिचर वेस्ट हो जाता है, राइट. तो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी इज वन ऑफ द रीजन. एंड दूसरी चीज, इलेक्शंस के समय द पॉलिटिकल प्रोमिसेस, फेक पॉलिटिकल प्रोमिसेस, पॉपुलिस्ट एजेंडाज एंड द फ्रीबीज. फ्रीबीज का मतलब होता है फ्री इलेक्ट्रिसिटी, फ्री वाटर, फ्री रिसोर्सेज, फ्री वाईफाई, ऑल दीज प्रोमिसेस ऑफ द पॉलिटिशियंस in order to win those elections. These are also creating an extra fiscal burden on the government. ठीक है, तो स्टेट्स ने, सेंटर ने अभी तक क्या स्टेप्स लिए हैं टू एनकरेज द स्टेट्स फॉर केपेक्स स्पेंडिंग.
तो पहली चीज तो यही वाली स्कीम आ जाएगी, स्पेशल असिस्टेंस टू स्टेट्स फॉर कैपिटल इन्वेस्टमेंट। दूसरी चीज आएगी टैक्स डेवल्यूशन ट्रांचेस जो हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट अब अर्ली रिलीज करने लगी है। अभी आई हैव एक्सप्लेन्ड यू रिगार्डिंग फाइनेंस कमीशन। फाइनेंस कमीशन सारी गाइडलाइंस रखती है कि किस सीक्वेंस में दे हैव टू रिलीज द टैक्स डेवल्यूशन टू द स्टेट्स। तो जिस टाइम पे टैक्स डेवल्यूशन रिलीज करना होता है उस टाइम से पहले ही सेंटर ट्राइज टू रिलीज द टैक्स डेवल्यूशन अमाउंट टू द स्टेट्स, सो दैट द स्टेट्स कैन, इससे पहले कि उनके रेवेन्यू डेफिसिट या सॉरी उनके रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स अराइज हो ऑफ दैट फिस्कल, उससे पहले उनके पास वो अमाउंट हो जिससे कि वो एक शेयर उसका कैपिटल एक्सपेंडिचर में इन्वेस्ट कर सके। ठीक है, तो ये हो गया हमारा दूसरा पॉइंट। थर्ड पॉइंट है Central government has regulated the state's borrowings under Article 293. See, borrowings, I've told you, any kind of expenditure that is creating a kind of regular liability on the government. मतलब regularly अगर government को कोई एक amount pay करना पड़ रहा है तो that will create a kind of revenue expenditure. और revenue expenditure हमने देखा था ये एक negative तरीके का expenditure होता है, तो हमें इसे discourage करना है। अब अगर गवर्नमेंट बोरो करती है कहीं से, अगर गवर्नमेंट लोन लेती है तो वो उस पर इंस्टॉलमेंट्स पे कर रही होती है एक रेगुलर इंटरवल पे, तो वो रेगुलरली उसके असेट को डिग्रेड कर रहा होता है। तो वी हैव टू लिमिट दीज बोरोइंग्स। इनको लिमिट करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या किया है, द सेंटर टाइटन्ड बोरोइंग नॉर्म्स फॉर द स्टेट्स बाय इंक्लूडिंग द ऑफ बजट लायबिलिटीज एज द पार्ट ऑफ स्टेट्स एनुअल नेट बोरोइंग सीलिंग। देखो क्या होता है, व्हेनेवर अ स्टेट गवर्नमेंट अप्रोचेस द सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर अ लोन, राइट, तो उस स्टेट गवर्नमेंट की कैपेसिटीज को मेजर किया जाता है कि whether what amount of loan can be granted to the state, what are the liabilities that are already going on the state, budgetary liabilities, मतलब जितनी लाइबिलिटी स्टेट ने शो करी है बजट के अंडर में, तो बजटेड लाइबिलिटीज उनकी देखी जाती हैं, जिसके बेसिस पर सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि इन्हें कितना लोन दिया जा सकता है और कितना इंटरेस्ट रेट इनके ऊपर अप्लाई किया जा सकता है, राइट। बट व्हाट हैपेंस इज कि बजटेड लाइबिलिटीज जो होती हैं ये बहुत कम होती हैं। क्यों कम होती हैं? बिकॉज वी हैव सीन डेफिसिट को इन्हें लिमिट करना होता है, तो डेफिसिट को इन्हें ये एक्चुअल में लिमिट नहीं कर पाते, तो ये इसको आर्टिफिशियली लिमिट करने की कोशिश करते हैं। इनके ऊपर जितनी भी लाइबिलिटीज होती हैं ये उसे बजटेड एक्सपेंडिचर की जगह नॉन बजटेड एक्सपेंसेस में मेंशन करते हैं, जिससे कि ऑन पेपर इनका डेफिसिट शो होता है कि ये रिड्यूस्ड है, राइट। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने अब क्या किया है कि इनकी जितनी ऑफ बजटरी स्पेंडिंग्स भी हैं उनको भी काउंट किया जाएगा while the eligibility of a state is being checked for a loan या for a borrowing, right? So this is it with this topic. Now coming on to way forward, these are some of the positive points you can integrate in your answers directly. पहला है चैनलाइजिंग केपेक्स बाय डायरेक्ट चैनल्स और बाय इनडायरेक्ट चैनल्स। या तो स्टेट्स खुद पे करें या फिर या तो स्टेट्स खुद केपेक्स पे इन्वेस्ट करें या फिर वाया इनडायरेक्ट चैनल्स, दैट इज दे आर प्रमोटिंग केपेक्स बाय crowding in private investment or by bringing in FDI. The next point is the fiscal prudence through finance commission. See, when sir will be dealing with the finance commission topic in your polity section, he'll be telling you finance commission के साथ सबसे बड़ी जो problem आती है वो ये है कि finance commission का जो role होता है वो advisory होता है, right? It cannot make any of its things to be followed by the government. वो कोई रेगुलेशन से फॉलो नहीं करा सकती अपना काम, उसका रोल है सिर्फ एडवाइजरी रोल, ठीक। तो इसकी वजह से होता क्या है, फाइनेंस कमीशन एक्चुअल में फिस्कल प्रूडेंस सेटअप नहीं कर पाता है जिसके लिए ये बनाया गया है, ठीक। तो इट इज सजेस्टेड कि द फाइनेंस कमीशन कैन बी गिवन सम मोर टीथ बाय गिविंग देम द अथॉरिटी ऑफ चेकिंग ओवर द फ्रीबीज ड्यूरिंग द इलेक्शन and by disincentivizing states to indulge in such kind of practices, right? Then next, a need for a council. So a recommendation regarding you need a supervisory body in the form of an expenditure council, which would recommend the states how the expenditure should be done and provide a rough map to the states for making such expenditures, right? Then next is increase in revenue sources. What common सा point है, state should search for alternate revenue sources like electricity and mining, then rebalancing or rationalizing of expenditure. Then the capex buffer, this is an important point.
केपेक्स बफर क्या होता है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर, सी एवरी टाइम आपके रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स हाई नहीं होंगे, कभी कभी आपके पास अच्छा अमाउंट ऑफ रेवेन्यू आएगा। तो ये कॉन्सेप्ट केपेक्स बफर का बेसिकली ये है कि जब आपके पास अच्छी रेवेन्यू अर्निंग्स हो, जब स्टेट के पास एक अच्छी रेवेन्यू अर्निंग्स हो, उस समय उन्हें एक बफर अमाउंट रख लेना चाहिए इन द फॉर्म ऑफ केपेक्स बफर। उस बफर अमाउंट को वो लोग तब खर्च करें जब उनके पास कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए अमाउंट बहुत ज्यादा कम हो जिस फिस्कल में, तो ये बफर अमाउंट कैन बी यूज्ड फॉर केपेक्स स्पेंडिंग्स। ठीक, दिस बफर अमाउंट हैज टू बी मेंटेन्ड in times when the state government has a good amount of revenue earnings, right? So this topic is done. Moving on to the next topic, urban cooperative banks. Now what are cooperative banks? Cooperative banks basically mainstream banking institutions नहीं होते हैं. In very layman terms, cooperative banks हम उन्हें कहते हैं जो कुछ group of people साथ आकर एक financial institution बनाते हैं जिनमें की इनिशियल कैपिटल इनका खुद का इन्वेस्टेड कैपिटल होता है। ठीक है, तो एक ग्रुप ऑफ पीपल है, इसी को हम कोऑपरेटिव कहते हैं, राइट। तो एक ग्रुप ऑफ पीपल है जिन्होंने साथ आकर एक बैंकिंग इंस्टीट्यूशन बनाया या एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बनाया, एंड इसमें इन्होंने इनिशियली जो इन्वेस्टमेंट थी वो इन्होंने अपनी तरफ से कुछ कंट्रीब्यूट करके दे हैव मेड दैट इन्वेस्टमेंट। तो वही इनका कॉर्पस ऑफ फंड्स होता है जहां से ये लेंडिंग और डिपॉजिट फैसिलिटीज शुरू करते हैं। लेटर ऑन ये पब्लिक डिपॉजिट्स भी लेने लगते हैं। सो दिस इज हाउ अ कोऑपरेटिव बैंक इज सेट अप। ठीक, तो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स न्यूज में क्यों है? बेसिकली ये न्यूज में 2019 से है, व्हेन पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक फेल्ड, राइट। Punjab and Maharashtra cooperative failed in 2019 and it had took over the deposits of a large people and all their deposits were stuck in their failure. Okay, तो उसके बाद से क्या हुआ, आरबीआई ने अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स या ओवरऑल कोऑपरेटिव बैंक्स को अपने एम्बिट में ले लिया था इन 2020 बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट में। इट मेड अ चेंज टू दिस बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 2020 में इन्होंने कोऑपरेटिव बैंक्स को भी अपने एम्बिट में ले लिया था। तो ये सिंस देन ये न्यूज में है। आरबीआई फ्रॉम टाइम टू टाइम सेवरल इंटरवेंशंस करती रहती है टू स्ट्रेंथन दीज अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स एंड टू मेक देम लेसर प्रोन टू एनी काइंड ऑफ फिस्कल इम्बैलेंसेस। ठीक है, तो वही काम इस बारी भी हुआ है। आरबीआई हैज नोटिफाइड दीज वाइटल मेजर्स टू स्ट्रेंथन दी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स। तो पहला मेजर है रिगार्डिंग एक्सपेंशन ऑफ ब्रांचेस। आरबीआई ने कहा है कि अगर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स को प्रेजेंट नंबर ऑफ ब्रांचेस से या प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में उसकी जितनी भी ब्रांचेस थी उसकी 10% ब्रांचेस, अगर उसे न्यू ब्रांचेस खोलनी है इस फिस्कल में, 10% ऑफ द नंबर ऑफ ब्रांचेस दे हैड इन प्रीवियस फिस्कल ईयर, उतने नंबर ऑफ, लेकिन ये एक्सीड नहीं करना चाहिए 5 ब्रांचेस। ओके, तो मैक्सिमम 5 ब्रांचेस तक का उन्होंने ऑटोमेटिक अप्रूवल रूट के थ्रू आरबीआई ने यूसीबीज को अलाउ कर दिया है टू सेट अप मैक्सिमम 5 बैंक ब्रांचेस या 10% of the total number of branches that the bank had in previous financial year, whichever is less। automatic approval route के अंडर में आरबीआई ने अलाउ कर दिया है कि हर बारी इतनी कम ब्रांचेस, अगर 5 ब्रांचेस तक सेट करनी है एक साल में, तो यू डोंट नीड एन अप्रूवल फ्रॉम आरबीआई। 5 से एक्सीड करोगे तो यू विल नीड एन अप्रूवल ऑफ आरबीआई, राइट। So this is the concept that has been introduced for expanding the branches of urban cooperative banks. दूसरा आ जाता है FSWM क्राइटेरिया, फाइनेंशियली साउंड एंड वेल मैनेज्ड नॉर्म्स। तो ये जो क्राइटेरिया है इसके लिए कुछ रिक्वायरमेंट सेटअप की गई हैं। वो रिक्वायरमेंट्स जो यूसीबी पूरी करती है उस यूसीबी को ये टैग दे दिया जाता है ऑफ FSWM, फाइनेंशियली साउंड एंड वेल मैनेज्ड बैंक। एक तरीके से इट इज प्रमोटिंग अ काइंड ऑफ हेल्दी कंपटीशन अमंग द अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स, ताकि वो स्ट्राइव करें अपने आप को मोर बेटर बनाने के लिए, सो दैट दे कैन हैव दिस टाइटल ऑफ FSWM। नाउ व्हाई दिस टाइटल इज हेल्पफुल फॉर द बैंक्स इज ये इनकी रैंकिंग इंप्रूव करेगा, इनकी क्रेडिबिलिटी इंप्रूव करेगा, क्योंकि ये टैग इनको आरबीआई देता है, राइट, फाइनेंशियली साउंड एंड वेल मैनेज्ड बैंक्स। और जितनी इनकी क्रेडिट रेटिंग बढ़ेगी या जितनी इनके ट्रस्ट वर्दीनेस बढ़ेगी उतना ही ज्यादा ये बैंक ग्रो करेगा।
right? So that is why this topic is this status is important for the urban cooperative banks. एक तरीके से ये healthy competition promote करने के लिए किया गया है. तो अब इसके अंडर में आपको लाइक बैंक्स के लिए क्या क्या क्राइटेरियाज रखे गए हैं ये देख लेते हैं. उससे पहले ये पॉइंट्स, बाकी के भी पॉइंट्स देख लेते हैं. बाकी के पॉइंट्स हैं वन टाइम सेटलमेंट्स, helping for technical write-off as well as settlement with borrowers. What is write-off of a loan? When a loan is regarded to be defaulted, जब उसकी इंस्टॉलमेंट्स या उसकी प्रिंसिपल अमाउंट पेमेंट टाइम पर नहीं आ रही होती है, तो उस केस में बैंक इसको कंसिडर करता है एक डिफॉल्ट लोन. उसके सेवरल फेजेस होते हैं, ऑन विच फेजेस it decides this as a bad loan. वो phases we'll see when we will be studying static in detail. फिलहाल के लिए it's important कि when a loan is considered to be converting into a defaulted loan या to be converting into a non-performing asset, तो उस समय पे क्या होता है, बैंक्स को अलाउ कर दिया गया है कि they can go on a one-time settlement with the borrower. The borrower, instead of giving interest payments on regular intervals, have to give a certain amount of money that is reached by concession between the bank and the borrower. वो certain amount of money उसे पे करना होता है all together instead of giving regular interest. और उस certain amount of money के exchange में बैंक क्या करता है, उस लोन को अपनी बैंक बुक्स में से रिमूव कर देता है, जिससे कि एनपीए का बर्डन नहीं बढ़ता एंड एक नॉन परफॉर्मिंग असेट को ये लोग कैश कर देते हैं. हाउएवर नॉट अप टू द लिमिट, जिस लिमिट तक वो लोन गया था, लेकिन कुछ अमाउंट में कैश कर लेते हैं सो दैट वो एक एनपीए बन के बैंक को डिफॉल्टर ना करे. ठीक है, तो दैट इज वन टाइम सेटलमेंट्स आर अलाउड टू दी यूसीबीज ऑल्सो नाउ. पीएसएल टारगेट की बात करें तो आरबीआई ने एक्सटेंशन दे दिया है 2 साल का यूसीबीज को अपने पीएसएल टारगेट्स अचीव करने के लिए. कोऑर्डिनेशन विद आरबीआई, तो आरबीआई एक नोडल ऑफिसर सेटअप कर देगी आरबीआई में ही फॉर दिस, फॉर डीलिंग विद यूसीबीज. ठीक है, अब देख लेते हैं फाइनेंशियली साउंड एंड वेल मैनेज स्टेटस के लिए क्या क्या क्राइटेरिया. तो पहला क्राइटेरिया है CRAR. वेट फॉर अ सेकंड. CRAR या आप कह सकते हो इसको इट्स दी CAR, कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो. ठीक, अब इसको इम्प्रूव करके कर दिया कैपिटल टू रिस्क असेट्स रेशियो. डोंट गो इनटू द टेक्निकलिटी ऑफ दीज टर्म्स. कैपिटल कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो बेसिकली क्या होता है, एक सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी बैंक्स को रिजर्व में रखना होता है इन लिeu ऑफ इट्स रिस्क वेटेड असेट्स. मतलब ऐसे पोटेंशियल लोन्स जो कि एनपीए में कन्वर्ट हो सकते हैं, उन रिस्क वेटेड असेट्स का कुछ परसेंटेज बैंक को अपने पास रिजर्व में रखना होता है इन केस ये लोन्स फेल करते हैं और एनपीए बनते हैं, तो ये बैंक पर कोई फाइनेंशियल बर्डन ना क्रिएट करे. इसके लिए उसको कुछ कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो या कैपिटल टू रिस्क वेटेड असेट्स रेशियो रखना होता है. ठीक, तो ये जो कैपिटल टू असेट्स रेशियो है, ये कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो है, ये यूसीबीज के लिए जो नॉर्म्स हैं, अभी आई विल बी टीचिंग यू फर्दर. यूसीबीज के लिए नॉर्म्स हैं, टियर 1 यूसीबीज को 9% ऑफ रिस्क वेटेड असेट CRR रखना पड़ता है, CAR. और यूसीबीज ऑफ टियर 2 to 4 को 12% रखना पड़ता है. ठीक, विल बी सीइंग इट इन डिटेल, डोंट वरी. तो FSWM का क्राइटेरिया है कि जितना भी अमाउंट यूसीबीज को एज कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो रखना होता है, उससे 1% ज्यादा उस यूसीबी ने मेंटेन कर रखा हो. ठीक, 1 percentage point above the minimum CRAR applicable to an यूसीबी. जितना भी कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो उस पर एप्लीकेबल है, उसका 1% ज्यादा उसने अपने पास सेव करके रखा होना चाहिए. इसके अलावा नेट एनपीए उसका 3% से ज्यादा नहीं होना चाहिए. नेट एनपीए मतलब होता है नॉन परफॉर्मिंग असेट्स, जिन असेट्स पर अब फाइनली डिसाइड हो गया है कि ना इंटरेस्ट अमाउंट वापस मिलना है और ना आपका प्रिंसिपल अमाउंट वापस मिलना है. ठीक, तो such kind of defaulted loans should not be more than 3%. Then coming on to third point is net profit for at least 3 out of preceding 4 years. मतलब वो बैंक, net profit का मतलब क्या होता है, बैंक will have certain profits and it will have certain losses. When you are adding up those profits and losses, तो overall बैंक profit में चलनी चाहिए. ठीक,
लास्ट 4 फाइनेंशियल ईयर्स में से एटलीस्ट 3 फाइनेंशियल ईयर्स ऐसे होने चाहिए जब बैंक ने नेट प्रॉफिट अर्न किया हो। देन नेक्स्ट पॉइंट इज नो डिफॉल्ट इन द मेंटेनेंस ऑफ सीआरआर और एसएलआर। तो कैश रिजर्व रेशियो या स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, क्या है ये टर्मिनोलॉजीज? अगेन डोंट गेट फ्राइटन्ड बाय दीज टेक्निकल टर्म्स, बहुत सिंपल सी टर्मिनोलॉजीज है। कैश रिजर्व रेशियो और स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो एक तरीके से बफर फंड होता है बैंक्स के, राइट? अब इसमें डिफरेंस क्या होता है इन दोनों में? ये बफर्स जो रखते हैं, एसएलआर जो है वो बैंक अपने खुद के पास रखती है, एक तरीके का बफर फंड होता है, उसके टोटल कैपिटल का कुछ परसेंटेज उसे अपने पास सिक्योर रखना होता है फॉर टाइम्स ऑफ नीड, ठीक। दूसरी तरफ आता है सीआरआर। सीआरआर क्या होता है? ये बैंक्स को आरबीआई के पास एक तरीके का बफर फंड रखना होता है, ताकि जब बैंक्स अप्रोच करें आरबीआई को फॉर द पर्पस ऑफ लोन, फॉर शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म लोन, तो आरबीआई उस बैंक के फंड में से ही उसको पैसा दे दे, ठीक है। तो ये होता है सीआरआर और एसएलआर। तो सीआरआर और एसएलआर के मेंटेनेंस को भी उसने प्रॉपर रखा हो बिना किसी डिफॉल्ट के। देन साउंड इंटरनल कंट्रोल सिस्टम इज एटलीस्ट 2 प्रोफेशनल नॉर्मल पॉइंट है। कोर बैंकिंग सॉल्यूशंस फुल्ली इंप्लीमेंटेड। कोर बैंकिंग सॉल्यूशन क्या है? इट इज रिलेटेड टू ब्रांच एक्सपेंशन, ठीक। द अकाउंट ऑफ अ पर्सन इन दैट बैंक should be accessible from all the branches opened of that banking system. Then no monetary penalty imposed on account of violation of RBI guidelines during the last 2 financial years. Clear? तो ये सारी कंडीशंस, अब ये कंडीशंस क्वेश्चन आता है याद करनी है, नहीं याद करनी है? तो याद करनी है, ओके, बिकॉज यूसीबीज इज एन इम्पोर्टेंट टॉपिक एंड यूसीबीज को अगर कोई स्टेटस दिया जा रहा है तो किन क्राइटेरिया पे दिया जाएगा, यू मस्ट नो इट। कमिंग ऑन टू यूसीबीज, यूसीबीज क्या होते हैं? दो नॉट फॉर्मली डिफाइंड, ये याद रखना है, कोई लीगल या कॉन्स्टिट्यूशनल डेफिनेशन नहीं है यूसीबीज की। इट रेफर्स टू प्राइमरी कोऑपरेटिव बैंक्स लोकेटेड इन अर्बन एंड सेमी अर्बन एरियाज। अबाउट 1500 यूसीबीज हैं in the country at present. In 2020, government made changes to Banking Regulation Act and brought the cooperative banks under direct supervision of RBI. वही वाला पॉइंट आया 2019 के पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव के फेल हो जाने के बाद 2020 में कोऑपरेटिव बैंक्स को आरबीआई ने अपने एम्बिट में ले लिया था। The amended law has given RBI the power to supersede the board of directors of the cooperative banks after consultation with the concerned state government. Understood? Earlier, it could issue such directions only to the multi-state cooperative banks. To strengthen the regulatory framework of the financial soundness of UCBs, a 4-tier structure has been introduced for them. तो टीयर 1 में आते हैं वो यूसीबीज जिनके डिपॉजिट्स हैं अप टू 100 करोड़। टीयर 2 में आते हैं 100 करोड़ टू 1000 करोड़। टीयर 3 में आते हैं 1000 करोड़ टू 10,000 करोड़। टीयर 4 में आते हैं 10,000 करोड़ से ज्यादा, ठीक है। 100 करोड़ से शुरू होता है, मिनिमम यूसीबी शुरू होगा 100 करोड़ के डिपॉजिट से, फिर 100 करोड़ से 1000 करोड़ तक का टीयर 2 यूसीबी होता है। टीयर 3 होता है 1000 से 10,000 करोड़ तक का, और टीयर 4 यूसीबी आपका होता है मोर देन 10,000 करोड़। ओके, देन इसके अलावा नेटवर्थ भी होती है। मिनिमम नेटवर्थ टीयर 1 यूसीबी की होती है 2 करोड़, और मिनिमम नेटवर्थ टीयर 2, 3, 4 यूसीबी की होती है 5 करोड़। ओके, अपार्ट फ्रॉम दिस सीआरएआर कितना रखना होता है? टीयर 1 यूसीबी को 9% ऑफ रिस्क वेटेड एसेट्स और टीयर 2 to 4 को 12% ऑफ रिस्क वेटेड एसेट्स। अंडरस्टूड? PSL targets, so 75% of their advances मतलब loans, 75% of their loans must go to the priority sector lending, including loans to MSMEs, export credit, housing, education. एक चीज याद रखनी है, प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग डज नॉट मीन कि पुअर लोगों को लोन देना या पॉवर्ट लोगों को लोन देना या नीडी को लोन देना। दिस इज नॉट ऑल अबाउट प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग। आरबीआई का जो प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग एजेंडा है, दैट इज अबाउट प्रोवाइडिंग लोन्स टू द प्रोडक्टिव सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी, टू द प्रोडक्टिव सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी, जहां कम इन्वेस्टमेंट के साथ मैक्सिमम आउटपुट लिया जा सकता है, जैसे कि एमएसएमईज हो गए, एक्सपोर्ट क्रेडिट हो गया, हाउसिंग हो गया, एजुकेशन हो गया, एग्रीकल्चर हो गया, ठीक है। सो दीज आर द लोन्स दैट कम अंडर द प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग टारगेट्स। Okay, so there's one assignment for you all. Priority sector lending, when was it launched by RBI?
and what sectors are included in priority sector lending? Do write in the comment section. Okay. Moving further, issues with UCBs. So what are the issues that UCBs face? High gross NPA. UCBs के NPA का अमाउंट है 8.7%, whereas नॉर्मल बैंक्स का, शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स जो होते हैं वो नॉर्मल बैंक्स होते हैं, नॉर्मल बैंक्स का 3.9% एनपीए है. तो यूसीबीज के पास एनपीए का जो अमाउंट है वो नॉर्मल बैंक से ज्यादा होता है. देन गवर्नेंस इश्यूज, वल्नरेबिलिटी स्टेमिंग फ्रॉम इंटरनल वीकनेसेस. देखो इंटरनल वीकनेसेस क्या होती हैं यूसीबी में, उसका स्ट्रक्चर उसकी वीकनेस होती है. आई हैव टोल्ड यू देयर इज अ ग्रुप ऑफ पर्संस, ठीक, जो कि एक इनिशियल इन्वेस्टमेंट लेकर साथ आते हैं और एक ऑर्गेनाइजेशन बना देते हैं, एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बना देते हैं. इन्हीं को हम कोऑपरेटिव बैंक कहते हैं. लेटर ये फर्दर एक्सटर्नल डिपॉजिट्स भी लेने लगते हैं. ठीक. अब इट इज नॉट नेसेसरी कि दीज ग्रुप ऑफ पीपल आर फाइनेंशियली एडेप्ट पीपल या दे हैव सम अमाउंट ऑफ फाइनेंशियल एजुकेशन. It's not at all important that these will be financially educated or financially adept people. Experts नहीं होते हैं ये. So they don't know how to run a financial institution. Okay? So this is one of the internal weakness of a cooperative bank. लेकिन दिक्कत क्या होती है, सारा मैनेजमेंट भी इन्हीं के हाथ में होता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स भी यही होते हैं. व्हाई? बिकॉज यही इनिशियल इन्वेस्टर्स होते हैं, मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट इन्हीं का होता है. ठीक है. तो डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी जो होती है वो एक्सपर्टीज इन्वॉल्व नहीं करती है, इसी वजह से देयर आर सर्टेन इंटरनल वीकनेसेस. एग्जाम्पल में ले लें, फॉर इंस्टेंस कोलैप्स ऑफ पंजाब एंड महाराष्ट्र, दैट एग्जाम्पल इज ओवर हियर आल्सो. फॉर इंस्टेंस कोलैप्स ऑफ पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक फॉलोइंग ग्रेव फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज. Then inability to adopt best practices. Why? Because they have a low capital base. कुछ लोग साथ आकर एक कैपिटल इकट्ठा कर लेते हैं और उससे एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन शुरू कर देते हैं, तो उनका जो कैपिटल बेस होता है वो बहुत कम होता है, तो वो नई टेक्नोलॉजीज में इन्वेस्ट नहीं कर पाते. ठीक है. हाई इन्फ्लुएंस ऑफ टॉप मैनेजमेंट, यू कैन जस्ट रीड आउट दिस पॉइंट. वही वाला पॉइंट है विच आई हैव एक्सप्लेन्ड यू. प्रमोटर ड्रिवन कंपनी होती है और प्रमोटर का सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस होता है ओवर ऑल द मैटर्स. डजंट मैटर दैट दैट प्रमोटर इज फाइनेंशियली एडेप्ट और नॉट, राइट. देन हाई कॉस्ट इनकम रेशियो. कॉस्ट इनकम रेशियो का मतलब क्या है? कॉस्ट इनकम रेशियो का होता है कि आपके इनकम कितनी आ रही है और आपके ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कितना है. ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कितना है. तो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस यूजुअली इन बैंक्स के बहुत हाई होते हैं, राइट, बिकॉज दे हायर सम प्राइवेट स्टाफ और समथिंग, तो they have a large amount of operating expenses. Average, on an average 10% higher as compared to commercial or normal banks. High credit risk, market risk, liquidity risk. I've told you these are not financial experts, so इसीलिए they are at more risk of the market. Other initiatives taken by government to overcome the UCBs. पहला है supervisory action framework. ये क्या करता है? ये करेक्टिव एक्शन करता है. करेक्टिव एक्शन मतलब इससे पहले कि ये फेल हो, उससे पहले उसके ऊपर कुछ रेगुलेशंस लगा दिए जाते हैं और उसकी डिपॉजिट टेकिंग और लोन गिविंग बंद कर दी जाती है, ठीक, बाय आरबीआई. तो दैट इज अ काइंड ऑफ करेक्टिव एक्शन. स्कीम फॉर वॉलेंट्री कन्वर्जन इनटू स्मॉल फाइनेंस बैंक्स. वॉलेंट्री कन्वर्जन इनटू स्मॉल फाइनेंस बैंक. स्मॉल फाइनेंस बैंक में क्यों कन्वर्ट कर देते हैं? क्योंकि स्मॉल फाइनेंस बैंक मेन स्ट्रीम बैंकिंग का हिस्सा है और दिस इज अ काइंड ऑफ डिफरेंशिएटेड बैंक जो कि लो वेज वर्कर्स, लो वेज बिजनेसमैन, स्मॉल बिजनेसेस, इन सबको लोन देता है, एमएसएमईज. ठीक है. तो इसमें इनको वॉलेंट्री कन्वर्जन की एक स्कीम लॉन्च की गई. एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन बनाया है आरबीआई ने जिसके पास एक कैपिटल अमाउंट होगा, एक तरह से एक बफर कैपिटल अमाउंट होगा, तो उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं ये यूसीबीज इन केस ऑफ देयर फेलियर्स. ठीक है. ये अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन एक आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर और कंसल्टेंसी सर्विसेज और फंड मैनेजमेंट भी ऑफर करेगा, राइट. सो दिस इज ऑल. ये विजन इंपॉर्टेंट है, सहकार से समृद्धि, इसीलिए कोऑपरेटिव सेक्टर इज वेरी मच फोकस्ड इन इंडिया एट प्रेजेंट. ठीक है. तो डन विद दिस ऑल्सो. अब आ जाते हैं हमारे तीसरे टॉपिक पे, दैट इज द क्रिटिकल मिनरल्स. दिस इज वन ऑफ द मोस्ट important topics, I must say.
ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक। अब देखो, बिफोर आई स्टार्ट विद दिस टॉपिक, लेट मी टेल यू वन थिंग, देयर आर सर्टेन क्रिटिकल मिनरल्स मेंशन्ड ओवर हियर। ठीक है, और इन प्रीवियस इयर्स वी हैव नोटिस्ड अ ट्रेंड कि दे आर आस्किंग क्रिटिकल मिनरल्स के बारे में। वो क्या पूछते हैं कि कौन सी कंट्री लार्जेस्ट रिजर्व होल्ड करती है और कौन सी कंट्री लार्जेस्ट प्रोडक्शन करती है। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। रिजर्व जरूरी नहीं जो कंट्री लार्जेस्ट रिजर्व होल्डर हो वही कंट्री लार्जेस्ट अमाउंट ऑफ प्रोडक्शन कर रही हो। ठीक, सो टू टैकल दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस यू मस्ट हैव एन एडिक्वेट डेटा। तो ये जो डेटा हम प्रोवाइड करेंगे, आई हैव टोल्ड यू अबाउट दैट 15 to 20 पेज डॉक्यूमेंट दैट आई विल बी प्रोवाइडिंग टुवर्ड्स द एंड ऑफ दिस मैगजीन। तो इस 15 to 20 पेज डॉक्यूमेंट में आई विल बी राइटिंग ऑल दोस क्रिटिकल मिनरल्स व्हिच हैव बीन इन न्यूज एंड which country has the largest reserves of it and which country has the largest production of it. ठीक है, तो I will be writing in it. अभी यहाँ नहीं ज्यादा explain करेंगे because again that issue paucity of time है, we can't afford to explain it over here right now. तो ये चीज एक उसमें 15 to 20 पेज डॉक्यूमेंट में amalgamated होगी। ठीक है, so don't worry about it, don't go anywhere here or there to search for different topics. जितना आपके लिए यूपीएससी के लिए रेलेवेंट है, we'll be providing that document, right? Starting with it, Ministry of Mines for the first time has released the report on the country, the report of the country on the critical minerals for India. तो पहली बार हमने critical minerals that are found in India and that are processed in India, उस पर हमने एक रिपोर्ट बनाई है. This is first ever report for India. Okay. Now, why it is more on news? The Ministry of Mines has constituted a committee for the identification of critical and strategic minerals. The list comprises 30 critical minerals, including 17 rare earth elements and 6 platinum group elements. See, this is something you don't need to remember. ठीक, इतना याद रखो, 30 critical minerals की list बनी है. ये आप याद रख सकते हो. 17 रेयर अर्थ है, 6 प्लैटिनम ग्रुप एलिमेंट्स है, लेकिन दिस काइंड ऑफ मतलब एलिमेंटल केमिस्ट्री में से क्वेश्चन नहीं बनता है. ठीक है, सो डोंट गो इनटू इट, डोंट गो इनटू डिटेल्स ऑफ इट. यू डोंट हैव टू स्टडी ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री ओवर हियर, उसमें मत जाओ. बस इतना याद रखो, इट इज अ लिस्ट ऑफ 30 क्रिटिकल मिनरल्स दैट आर फाउंड इन इंडिया. ठीक है, each designated as critical based on their limited availability in geological reserves. देखो, critical minerals जब हम बोलते हैं तो हम उनको किस बेसिस पर critical बोलते हैं? पहली चीज, उनका इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस क्या है. दूसरा क्राइटेरिया होता है सप्लाई रिस्क, राइट. पहली चीज कि उस मिनरल की इकोनॉमिक एरिना में इंपॉर्टेंस क्या है. दूसरी चीज है, दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसका सप्लाई रिस्क, मतलब उसकी लिमिटेड अवेलेबिलिटी. चाहे हम उसको इंपोर्ट कर रहे हो, चाहे हम डोमेस्टिकली प्रोड्यूस कर रहे हैं, लेकिन उसकी लिमिटेड अवेलेबिलिटी ये डिसाइड करती है कि वो मटेरियल या वो मिनरल कितना क्रिटिकल. ओके, उसकी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस और उसकी लिमिटेड अवेलेबिलिटी डिसाइड्स दैट व्हिच मिनरल इज अ क्रिटिकल मिनरल. अंडरस्टूड? ओके, तो ये जो दे रखा है REE include 15 lanthanides, scandium and all these, this is not at all important for you. So the criticality of minerals is judged mainly by two parameters. See, I've told you. Refer image, economic importance and supply risk. The list will serve as a guiding framework for policy formulation, strategic planning and investment decisions in the mining sector. Moving on further. What are critical minerals? Critical minerals are the elements that are building blocks of essential modern day technologies and are at a risk of supply chain disruptions. For example, antimony, beryllium, bismuth, cobalt, copper, etc. तो देखो, ये जो है ये इंपॉर्टेंट क्रिटिकल अर्थ मिनरल्स हैं या क्रिटिकल मिनरल्स हैं, जिसके बारे में आई विल बी प्रोवाइडिंग नेसेसरी इंफॉर्मेशन इन दैट पीडीएफ. डोंट वरी फॉर इट, सारी नेसेसरी इंफॉर्मेशन उसमें होगी, क्योंकि वो प्योर फैक्चुअल डेटा है, तो कोई मतलब भी नहीं है उसको यहाँ पे डिस्कस करने का. यू जस्ट हैव टू सिंपली मग देम अप. ठीक है, सो देयर इज नो नीड ऑफ एक्सप्लेनिंग इट ओवर है, कुछ एक्सप्लेन करने लायक उसमें होता नहीं. ये पॉइंट एक इंपॉर्टेंट है which you can take from this article is, for India major import sources of cobalt are China, US and Japan. तो cobalt इंडिया सबसे ज्यादा हाईएस्ट एक्सपोर्ट्स इंडिया के कोबाल्ट के कहां से आते हैं? चाइना से.
सेकंड नंबर पे यूएस है, थर्ड नंबर पे जापान है. See, let me tell you, China is the leading country in rare earth minerals. Critical minerals and rare earth minerals में China is a leading country. ताइवान और चाइना. ठीक है. दूसरा जो इंपॉर्टेंट मिनरल है दैट इज लिथियम. लिथियम के हाईएस्ट रिजर्व्स यूपीएससी प्रीवियस ईयर्स में पूछ चुकी है, एंड सर विल बी डीलिंग विद प्रीलिम्स प्रीवाईक्यू सेक्शंस, वो आपको ये क्वेश्चन कराएंगे. ओके. सो लिथियम के जो हमारे लार्जेस्ट एक्सपोर्ट सोर्सेज हैं, सॉरी इंपोर्ट सोर्सेज हैं, वो है चाइल, रशिया, चाइना. निकल में लिथियम के हाईएस्ट रिजर्व्स, राइट इन द कमेंट सेक्शन, क्योंकि पीवाईक्यू है, सो आई एम आस्किंग यू. लिथियम का हाईएस्ट प्रोडक्शन तो चाइल करता है, लेकिन लिथियम के लार्जेस्ट रिजर्व्स किस कंट्री के पास है? टू राइट इन द कमेंट सेक्शन. निकल क्या हमारा लार्जेस्ट इंपोर्ट पार्टनर है? स्वीडन. सेकंड नंबर पे है चाइना. सो दिस इज एन इम्पोर्टेंट पॉइंट विच यू मस्ट रिमेम्बर वेल. These minerals are now used everywhere, from making mobile phones, computers, to batteries, electric vehicles, and green technologies like solar panels and wind turbines. Based on their individual needs and strategic considerations, different countries create their own lists. So every country has its own list of critical minerals. I have told you ना, उसकी economic importance and उसकी limited availability के basis पे. अब किसी country में अगर वो ज्यादा मिल रहा है तो उस country के लिए वो critical mineral नहीं है. हमारी कंट्री में जैसे सैंड है एडिक्वेट अमाउंट में, तो हमारे लिए सैंड इज नॉट अ क्रिटिकल मिनरल. लेकिन जहां पर कोल्ड डेजर्ट है वहां पे सैंड इज अ क्रिटिकल मिनरल, राइट? सो दैट इज हाउ डिफरेंट कंट्रीज हैव अ डिफरेंट लिस्ट ऑफ क्रिटिकल मिनरल्स. ओके, मूविंग फर्दर. सिग्निफिकेंस ऑफ क्रिटिकल मिनरल्स फॉर इंडिया. बहुत कॉमन से पॉइंट्स हैं. इकोनॉमिक ग्रोथ, सेल्फ रिलायंस, प्रमोटिंग क्लाइमेट एक्शन, डिफेंस, डिफेंस सेक्टर, एरोस्पेस और डिफेंस सेक्टर की टेक्नोलॉजीज में भी हेल्प होता है. सिक्योरिटी, ठीक है, दीज आर मेन स्पेसिफिक पॉइंट्स. हमें इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का जो कमिटमेंट है हमारा 2030 तक इलेक्ट्रिक व्हीकल्स लाने हैं, तो इस कमिटमेंट में भी इट विल हेल्प इट आउट, क्योंकि लिथियम आयन बैटरीज में लिथियम यूज होता है. ठीक है, सो दैट इज ऑल अबाउट these pointers. These are not much important, you can read it out yourself. ठीक है. The mains answer writing session we'll be doing, I will be telling you how to write these points in a arranged format. ठीक है. Concerns associated with critical minerals, ये है थोड़ा सा important part. पहली चीज है dependence on imports. ठीक है, हमारे यहाँ हमारी जो क्रिटिकल अर्थ एलिमेंट्स या क्रिटिकल मिनरल्स जो हमारी अवेलेबिलिटी है वो बहुत कम है. ठीक है, ऑल दोज क्रिटिकल मिनरल्स जो कि प्रमोट हो रहे हैं या जो कि टेक्नोलॉजीज में यूज होने हैं, उनकी अवेलेबिलिटी हमारी कंट्री में कम है, तो हम लार्जली जो है वो क्रिटिकल मिनरल्स को इंपोर्ट करते हैं. सो दिस इज वन ऑफ द लार्जेस्ट कंसर्न, क्योंकि हमारा एक ह्यूज अमाउंट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज जाता है इन दीज इंपोर्ट ऑफ क्रिटिकल minerals. Some critical mineral assets for the country's manufacturing sectors, particularly green technologies, are not ready to be mined. There are also some critical minerals of which there exist no known resources within the country, because of which we have to depend largely on import. दूसरी चीज आ जाती है सप्लाई चेन इश्यूज. सप्लाई चेन इश्यूज हम किन्हें कहते हैं? अब मानो जो कंट्री एक प्रोड्यूसर है, ठीक, वो कंट्री ऑलमोस्ट 3/4 कंट्रीज को, वर्ल्ड की 3/4 कंट्रीज को वो क्रिटिकल अर्थ एलिमेंट एक्सपोर्ट कर रही है. ठीक, अब इस कंट्री में या तो कोई नेचुरल डिजास्टर हो जाता है या इस कंट्री की राइवलरी हो जाती है किसी एक ऑपोजिट कंट्री से, और उस ऑपोजिट कंट्री के थ्रू वो बाकी और कंट्रीज में जा रहा था, तो क्या होता है, ये सारी जो एक्सपोर्ट है ये अफेक्ट होता है. ठीक, अब ये एक्सपोर्ट इफेक्ट होता है तो पूरे वर्ल्ड में उस क्रिटिकल अर्थ एलिमेंट या क्रिटिकल एलिमेंट की जो अवेलेबिलिटी है वो रिड्यूस हो जाती है. ओके, so this is the supply chain disruption. So geographical concentration of extraction or processing in a few locations may lead to supply chain disruptions or vulnerabilities. Understood? For example, 3/5 of the rare earth minerals essential for clean energy, electronics, and defense technologies are mined in India, while more than 4/5 are processed here. I've told you, no? Sorry, mined in China. I've told you China is a kind of hub for the critical minerals. ठीक है,
तो maximum 3/5 of the rare earth minerals are mined in China and 4/5 of the critical minerals are processed in China. ठीक, तो चाइना से किसी का भी अगर कुछ डिसेंशन हो जाता है तो वहां से क्रिटिकल मिनरल के एक्सपोर्ट्स कम हो जाते हैं. ठीक है. ट्रेड पॉलिसीज, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. क्रिटिकल मिनरल्स की जो सप्लाई है वो इंडिविजुअल कंट्री की अपनी ट्रेड पॉलिसीज पे डिपेंड करती है. राइट. वो हर एक इंडिविजुअल कंट्री की अपनी ट्रेड पॉलिसीज पे डिपेंड करती है. जैसे कि फॉर एग्जांपल यू कैन टेक इज इंडोनेशिया, द होस्ट टू वर्ल्ड्स लार्जेस्ट निकल रिजर्व्स. यहाँ से एक पॉइंट मिला आपको. निकल के लार्जेस्ट रिजर्व्स कहाँ पर हैं? इंडोनेशिया के पास. पीछे चलते हैं. निकल से हमारा जो लार्जेस्ट जो एक्सपोर्टिंग कंट्री है निकल की वो कौन सी है? स्वीडन. तो देखा ना, लार्जेस्ट रिजर्व्स किसके पास है? इंडोनेशिया के पास, लेकिन लार्जेस्ट एक्सपोर्टर कौन है? स्वीडन. राइट. So these are the points which you need to remember. For example, Indonesia, host to the world's largest nickel reserves, has banned export of raw nickel ore. Why? Because they seek to develop a domestic nickel processing industry. अब उनको एक डोमेस्टिक निकल प्रोसेसिंग इंडस्ट्री बनानी है, उन्होंने उसके लिए टेक्नोलॉजी डेवलप कर ली है. तो अब वो निकल ओर का जो रॉ निकल ओर का एक्सपोर्ट है उसे लिमिट करेंगे. अब इससे होता क्या है, जो बाकी कंट्रीज निकल इंपोर्ट कर रही थी इंडोनेशिया से, वो कंट्रीज अब निकल से डेफिसिट हो जाएंगे. ओके. तो उनकी इंडिविजुअल ट्रेड पॉलिसीज पे डिपेंड करता है, इसीलिए इंपोर्ट डिपेंडेंसी इज अ डेंजरस थिंग. देन लैक ऑफ पीरियोडिक असेसमेंट. वी डू नॉट track our critical earth minerals regularly. The biggest evidence is this news itself. ये first ever report है, हम अपने critical minerals पे बना रहे हैं. Limited substitutes and recycling. This is important point. Critical earth elements के substitutes कम होते हैं and recycling नहीं होती है because recycling rates are very low in these rare earth minerals. Initiatives देख लो, ये सारा factual data है. You need to remember it by heart. इंडिया ऑस्ट्रेलिया क्रिटिकल मिनरल्स इन्वेस्टमेंट पार्टनरशिप. इसमें क्वेश्चंस इस तरीके से भी बन जाते हैं कि रिसेंटली इंडिया ने किसके साथ क्रिटिकल मिनरल्स पार्टनरशिप साइन किया है, तो इट इज ऑस्ट्रेलिया. ठीक है. It will build new supply chains underpinned by critical minerals processed in Australia to help India's plans to lower emission from its electricity network and become a global manufacturing hub for including for electric vehicles. Not at all important. Details important नहीं है, इतना याद रखो. क्रिटिकल मिनरल्स इन्वेस्टमेंट पार्टनरशिप हमने किसके साथ साइन करी है? ऑस्ट्रेलिया के साथ. Then mineral security partnership. India has joined mineral security partnership, which is a US-led collaboration of 14 countries. This is important. Mineral security partnership US-led collaboration है 14 countries का, which aims to catalyze public and private investment in critical mineral supply chains globally. ठीक है. So not only government investments, it will also crowd in private investment. Mineral security partnership. Mines and Minerals Development and Regulation Amendment Bill 2021. It ensures transparency in the auction process of mines and enhances domestic and foreign investment in the mining sector. SCRI was very much in news last year. You all might be knowing it. Supply Chain Resilience Initiative. ये बेसिकली है टू डाइवर्सिफाई दी सप्लाई चेन फ्रॉम दी चाइना. ठीक, चाइना से आपको एक अपना टारगेट हटा के अपनी जो सप्लाई चेन्स है उन्हें डाइवर्सिफाई करनी है. टू इंडिया, जापान एंड ऑस्ट्रेलिया हैज स्टार्टेड दिस SCRI टू एनहांस द रेजिलियंस ऑफ सप्लाई चेन इंडो पैसिफिक चाइना in the Indo-Pacific region and reduce the reliance on China. ठीक है. So this was all about this topic. वे फॉरवर्ड है, देखो मिनिस्ट्री ऑफ माइंस की कुछ रिकमेंडेशंस हैं, यू कैन जस्ट गो थ्रू देम. नॉर्मल रिकमेंडेशंस है. डाइवर्सिफाइंग ऑफ सप्लाई चेन्स, आई हैव टोल्ड यू. नेशनल फ्रेमवर्क बनाना चाहिए क्रिटिकल अर्थ मिनरल स्किल्स. दीज आर सम ऑफ द रिकमेंडेशंस. पॉजिटिव पॉइंट्स हैं जो आपको अपने आंसर में लिखने होते हैं. राइट. सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री इन इंडिया. दूसरे टॉपिक पे चलते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल अंडरस्टैंड व्हाट इज अ सेमीकंडक्टर. फिजिक्स में दो टर्म्स होते हैं, एक होता है कंडक्टर, एक होता है इंसुलेटर. इंसुलेटर होता है जो बिल्कुल इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर रहा होता है. कंडक्टर होता है जो कंप्लीटली इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर रहा होता है. राइट. इनके बीच का एलिमेंट होता है सेमीकंडक्टर, जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट तो करता है लेकिन नॉट अप टू अ लेवल कि वो आपको हार्म करे. मतलब कहने का मतलब ये है जैसे मोबाइल.
your mobile phone, your laptop, these are using semiconductor devices. ठीक, ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर रहे हैं, ये चल इलेक्ट्रिसिटी से रहे हैं, लेकिन आपको वो इलेक्ट्रिसिटी फील नहीं होती। इसकी जगह आप ले लो एक कॉपर वायर। कॉपर वायर इज अ कंडक्टर, वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, लेकिन यू कैन नॉट टच अ कॉपर वायर व्हाइल इट इज कंडक्टिंग इलेक्ट्रिसिटी, बट यू कैन टच योर मोबाइल, यू कैन टच योर लैपटॉप, राइट? सो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन, बहुत लेमैन टर्म्स में ये होता है सेमीकंडक्टर। देखो टेक्निकल डेफिनेशन इज वेरी हार्ड, ठीक है, वो जब साइंस एंड टेक पढ़ेंगे तब पढ़ाएंगे सेमीकंडक्टर कैसे काम करता है, क्या उसके फंक्शनैलिटीज होती हैं, वी टीचिंग यू। अभी आपको नॉर्मली बस इतना जानना है, कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच का डिवाइस होता है सेमीकंडक्टर। इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट तो कर रहा है, लेकिन नॉट अप टू दैट लेवल ऑफ कंडक्टर, ओके? और कंप्लीटली कंडक्शन बंद भी नहीं है, नॉट अप टू द लेवल ऑफ इंसुलेटर, राइट? सो नाउ लेट्स मूव फर्दर विद आवर टॉपिक, सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री इन इंडिया। अब ये देखो न्यूज में क्यों है, क्योंकि सेमीकंडक्टर्स आर द बेस ऑफ द मॉडर्न डे टेक्नोलॉजी। सेमीकंडक्टर्स आर द बेस ऑफ मॉडर्न डे टेक्नोलॉजी, ठीक, इसीलिए सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री को हम अब प्रमोट कर रहे हैं इंडिया में। चिप्स, जो माइक्रो चिप्स बनती हैं, दे आर मेड अप ऑफ सेमीकंडक्टर्स, ठीक है? तो स्टार्ट करते हैं। By news, the government has decided to invite new applications for setting up of semiconductor fabs and display fabs in India under the modified Semicon India program. Semicon India program. Semicon, the word has itself semiconductor in it. So Semicon India program is related to promoting semiconductors in India. ठीक है, इसकी रेगुलर मीटिंग्स होती हैं। सेमीकंडक्टर फैब्स और डिस्प्ले फैब्स क्या? देखो, फैब्स का मतलब है, इट्स अ शॉर्ट फॉर्म फॉर फैब्रिकेशन, ठीक है? तो सेमीकंडक्टर फैब्स आर बेसिकली फैब्रिकेशन यूनिट्स, एंड दीज फैब्रिकेशन यूनिट्स व्हाट डू दे डू इज, वो रफ सेमीकंडक्टर शीट्स को कंपाइल करके दे कन्वर्ट इनटू माइक्रोचिप्स और दे कन्वर्ट इनटू डिवाइसेस, ठीक है? तो यही है सेमीकंडक्टर फैब्स या सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन यूनिट्स इंडिया में सेटअप करने के लिए, प्रमोट करने को द गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड in the Semicon India program, ठीक है? ये है the news all about modified Semicon India program. The Ministry of Electronics (MeitY) has launched the Semicon India program for the development of a sustainable semiconductor and display ecosystem in 2021. 2021 में ये स्कीम लाई गई थी। Objective is to provide attractive investment incentive support to companies consortia that has engaged in silicon semiconductor fabs, display fabs, compound semiconductors, semiconductor design, etc. ठीक है, तो उनको इंसेंटिवाइज करना है हमें, जिससे कि वो इसका जो है प्रोडक्शन वो इनहेंस करेगा, ठीक है? इंसेंटिवाइज करना है जिससे कि वो प्रोडक्शन को इनहेंस करें। देन फर्दर इज टेन्योर, कितने सालों का है ये? कितने सालों का है? दिस इज अ 6 year टेन्योर स्कीम। नोडल एजेंसी है आपकी इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन विद इन द डिजिटल इंडिया कॉर्पोरेशन अंडर मिनिस्ट्री ऑफ, वेट फॉर अ सेकेंड, हाँ, अंडर मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मीटिंग। It is the designated nodal agency for it, right? Now moving on further, wait, these are the 4 schemes, you can have a look on it, ठीक है? ऐसे इतना कुछ इनमें देखना नहीं है, क्योंकि इनके नाम में ही सब कुछ इनहेरेंट है ऑलरेडी, और अभी न्यूली लॉन्च स्कीम्स हैं, so there is nothing that they have achieved very substantial, तो ठीक है, उनके नाम में सारा चीजें इनहेरेंट है। इंडिया सेमीकंडक्टर मार्केट, यहाँ से आता है थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट, यू नीड टू नो अबाउट द मार्केट साइज। इंडिया सेमीकंडक्टर मार्केट टू वैल्यू अबाउट $64 billion by 2026, showing 3 times growth from 2019, ठीक है? तो 2026 तक it is expected to grow by $64 billion. According to India Electronics and Semiconductor Association, semiconductor consumption in India is growing at a rate of 15.1% per year, ठीक है? 15.1% के रेट से ग्रो कर रहा है सेमीकंडक्टर कंजम्पशन हमारे इंडिया में, ठीक? 15.1% पर ईयर के रेट से ग्रो कर रहा है, जिसमें इट इज एक्सपेक्टेड कि 2026 तक $64 बिलियन का मार्केट बन जाएगा, विच इज 3 times द ग्रोथ फ्रॉम 2019, राइट?
चिप मैन्युफैक्चरिंग के बारे में देखते हैं. Chip manufacturing, India has become the hub for semiconductor design with nearly 2,000 chips being designed per year. ठीक, तो per year we are designing around 2,000 chips, जो कि हमें बनाता है hub for semiconductor designs. We are being made the hub for semiconductor designs, right? Then next is R&D in the industry, or the research and development in the industry. Research and development, which includes electronic products and embedded systems, generated about $2.5 billion in revenue. See these data जो हैं, you cannot remember these data by heart क्योंकि data काफी सारा होता है. ऐसा नहीं है कि you just have to remember the semiconductor industry data. आप बस इतना याद करो कि 2019 के कंपैरिजन में 3 times ये ग्रो कर सकता है. इसका पोटेंशियल इतना है, ठीक है. So this potential needs to be remembered. बाकी इसके अलावा डेटा you can simply skip. ठीक है, ये याद रख लो कि chips we are designing at 2,000 chips per year. We are designing at a rate of 2,000 chips per year. So this is some substantial contribution, because of which it is expected that we will be growing up to $64 billion in the semiconductor industry by 2026, right? Now moving on to next topic, the global semiconductor scenario and India's role. The global semiconductor scenario and India's. So now let us look into this global semiconductor scenario and what is the India's role in the global market of semiconductors. Coming on to major producers, presently Taiwan is the world leader in manufacturing microchips, with producing over 60% of the world's semiconductors and over 90% of the most advanced ones. So as regards major producer, we have Taiwan as the country which is the world leader in manufacturing the microchips. So Taiwan is the world's leader in manufacturing microchips, with producing over 60% of the world's semiconductors and over 90% of the most advanced semiconductors, right? So Taiwan is the world leader in manufacturing of microchips, and it produces the 60% of the world's semiconductor requirement comes from Taiwan. Now looking into the US-China conflict, presently USA and China are engaged in trade and technology conflict. The USA passed the Chips and Science Act, providing subsidies for manufacturing chips in the country, formed the Chip for Alliance, and imposed additional restrictions on Chinese semiconductor industry. In a similar manner, China puts curbs on the exports of germanium and gallium, two niche metals used in the manufacturing of semiconductors, right? So देखो हुआ क्या, US ने in a trade conflict, what it did was it has started promoting the indigenous chip manufacturing industry, ठीक है. तो अब ये जब यूएसए ने इंडिजिनस चिप मैन्युफैक्चरिंग शुरू कर दी, तो इनिशियली हमने देखा था कि चिप इंडस्ट्री में जो लीडिंग प्रोड्यूसर है वो कौन है, चाइना है, राइट. तो अब चाइना का कंपटीशन कम होगा, व्हाई, बिकॉज यूएस विल स्टार्ट प्रोड्यूसिंग चिप्स. तो चाइना ने इसके एक्सचेंज में क्या किया, उसने जर्मेनियम और गैलियम के एक्सपोर्ट्स को लिमिट कर दिया या कर्ब्स लगा दिए उसके ऊपर. और जर्मेनियम और गैलियम जो होता है, व्हाइल आई विल बी अपलोडिंग इन दैट 15 to 20 पेज और नोट्स, जर्मेनियम और गैलियम के बारे में भी आई विल बी अपलोडिंग. जर्मेनियम और गैलियम दो नीश मेटल्स हैं. नीश मेटल्स मतलब मोस्ट इम्पॉर्टेंट मेटल्स हैं जो कि सेमीकंडक्टर्स और चिप्स के डेवलपमेंट में यूज किए जाते हैं. कार्डिनल मेटल्स है, ठीक है. विदाउट जर्मेनियम एंड गैलियम यू कैन नॉट मैन्युफैक्चर द सेमीकंडक्टर चिप्स. तो चाइना ने क्या किया, जर्मेनियम और गैलियम के प्रोडक्शन एक्सपोर्ट्स को कर्ब कर लिया, राइट. तो these things are causing supply chain disruptions. है तो ये सिर्फ यूएस और चाइना का कॉन्फ्लिक्ट, लेकिन इससे अफेक्ट क्या हो रहा है, पूरे वर्ल्ड के जर्मेनियम और गैलियम एक्सपोर्ट्स अफेक्ट हो, राइट. Now coming on to India's role, India has positioned itself as a player in the critical semiconductor technology field, providing an opportunity for companies to diversify their bases from China. In 2022, India signed India-US Initiative on Critical and Emerging Technologies deal. India launched its India Semiconductor Mission in 2021 and PLI scheme for the semiconductor industry. PLI scheme is Production Linked Incentive. अभी आगे PLI का टॉपिक है, I'll be discussing it in detail. ठीक है, इस मंथ की मैगजीन में है, you have a PLI topic. India can be a major beneficiary of Taiwan's new southbound policy, focusing on shifting its trade and investment from China to Southeast Asia and South Asia, right? So these are the global semiconductor scenario and India's role. आगे बढ़ते, इसमें कुछ इतना स्पेसिफिक नहीं था, मेंस मटेरियल ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसमें.
नथिंग मोर देन दैट। पीछे आते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री फॉर इंडिया। तो मार्केट ग्रोथ पोटेंशियल इसका ज्यादा है, ठीक है। करेंटली वैल्यूड $2 ट्रिलियन। हमने देखा था कितना पहुंचना है $, आई थिंक 26 बिलियन के अप्रॉक्स पहुंचना है ये बाय 2020, सॉरी 26 बिलियन नहीं, 2026 वाज द ईयर आई थिंक। So by 2026 it is expected to grow up to $64 billion, ठीक है। तो जो मार्केट होल्डिंग कैपेसिटी है इसकी, that is a very huge one. Then India as a global hub, the vision of national policy on electronics is to position India as a global hub for electronic system in design and manufacturing. And strategic significance, India wants to achieve technological leadership and it is important to the security of countries critical information infrastructure. Critical information infrastructure जरूरी नहीं होता सिर्फ सिक्योरिटी और डिफेंस से रिलेटेड जो इंफॉर्मेशन स्टोर्ड है वो इम्पोर्टेंट है, बट क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर में हेल्थ और एजुकेशन से रिलेटेड भी जो लोगों के पर्सनल डेटाज हैं, दैट आल्सो इंक्लूड्स द critical information infrastructure. Any kind of information the destruction of which could have a great impact on the country is termed as a critical information infrastructure, right? Now, moving on to our, okay, so it is the key to security of countries' critical information infrastructure, okay? Now, apart from this, we have a point. The program will attract large, wait for a second. The program will attract large global chip makers to make India their production base, fulfilling the government's vision for Atmanirbhar Bharat. Okay, so global chip makers will be invited. Thus, we will be making indigenous production of chips. ठीक है, तो Semicon India program is to promote semiconductor industry in India, right? चलो आगे देख लेते हैं सेमीकंडक्टर्स क्या होते हैं. I've told you. See, वही लेमैन टर्म्स में ही यहाँ भी डिस्क्राइब्ड है. सेमीकंडक्टर आर दी मटेरियल्स which have a conductivity between the conductors and insulators. Semiconductors can be pure elements such as silicon or germanium, or they can be compounds such as gallium arsenide or cadmium selenide. नाम याद नहीं करना है, not so relevant. Semiconductor chip is a network of semiconductors, also called integrated circuits or microchips. End-use industries dependent on semiconductors are mobile devices, telecom equipment, industrial machinery, computing devices, automobiles, etc. End-use industry मतलब हमारे सेमीकंडक्टर्स कौन सी इंडस्ट्रीज में यूज होते हैं, ठीक है. दे आर end-use industries. Coming on to challenges for India. कॉमन चैलेंजेस है जो कि सारी टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट्स में चैलेंजेस आते हैं, वही सारे चैलेंजेस है उसमें. इंफ्रास्ट्रक्चर रिक्वायरमेंट्स, लॉन्ग जेस्टेशन पीरियड. लॉन्ग जेस्टेशन पीरियड का मतलब है इसका जो पीरियड ऑफ प्रोडक्शन होता है वो एक लंबा पीरियड होता है, ठीक. और उस लंबे पीरियड में रिटर्न्स कुछ आने नहीं है, लेकिन इन्वेस्टमेंट उसको रेगुलर चाहिए, ठीक है. तो ये लॉन्ग जेस्टेशन पीरियड होता है. डिलेज इन सेटिंग अप फैसिलिटीज, शॉर्टेज ऑफ स्किल्ड वर्कर्स, नीड फॉर द इकोसिस्टम, ठीक है. दीज आर ऑल वेरी कॉमन पॉइंट्स जो कि सारी टेक्नोलॉजीज में लिखे जाते हैं. अगेन वे फॉरवर्ड में फिर से वही सारे कॉमन पॉइंट्स, इकोसिस्टम डेवलपमेंट, स्किल डेवलपमेंट, इंक्रीज फोकस ऑन R&D, इंसेंटिवाइजिंग इंडस्ट्री, पार्टनरशिप, अट्रैक्टिंग फॉरेन कंपनीज, ठीक है. सारे कॉमन पॉइंट्स हैं, दे डू नॉट रिक्वायर एन एक्सप्लेनेशन, रीड कर लेना बस. देन The mission on advanced and high impact research, माहिर. किसका मिशन है ये? मिनिस्ट्री ऑफ पावर एंड मिनिस्ट्री ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी. ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि मिशन किस पर्पस का है, ठीक है. मिशन ऑन एडवांस्ड एंड हाई इम्पैक्ट रिसर्च, किस पे? पावर और रिन्यूएबल एनर्जी पे रिसर्च करनी है, ठीक है. रिन्यूएबल एनर्जी रिलेटेड जितनी भी नई नई फील्ड्स हैं उसमें हमें रिसर्च करनी है. गवर्नमेंट ने 8 फील्ड्स रिकॉग्नाइज करी हैं. ये 8 टेक्नोलॉजीज हैं जिन पे गवर्नमेंट रिसर्च करने का प्लान कर रही है. डोंट वरी अबाउट दीज टेक्निकल टर्म्स. ये सारी टेक्नोलॉजीज आई विल बी मेकिंग सेपरेट वीडियोस ऑन ईच एंड एवरी टेक्नोलॉजी. हार्डली 10 to 12 मिनट्स का वीडियो होगा, आप उसमें ये सारी टेक्नोलॉजीज को अच्छे से समझ सकते हो. अभी यहाँ पर समझाने का कोई रेलेवेंस है नहीं बिकॉज वी डोंट हैव टाइम, ठीक है. अभी बस ये समझो कि माहिर प्रोग्राम क्या है. मिशन ऑन एडवांस्ड एंड हाई इम्पैक्ट रिसर्च, किस पे रिसर्च करनी है? पावर और एनर्जी सेक्टर पे. तो कौन सी मिनिस्ट्रीज इन्वॉल्व है? पावर और NRE इन्वॉल्व है, न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, ठीक. ज्वाइंट मिशन है.
to leverage emerging technologies in the power sector. ये ऑब्जेक्टिव्स क्या है? वही कॉमन ऑब्जेक्टिव्स जो हर प्रोग्राम के होते हैं. आइडेंटिफाई इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज एरियाज, क्रिएट अ वाइब्रेंट इनोवेटिव सिस्टम, सपोर्टिव पायलट प्रोजेक्ट्स. पायलट प्रोजेक्ट्स क्या होता है? जो हम एक तरीके से सैंपल प्रोजेक्ट बनाते हैं. ठीक है, एक्चुअल प्रोजेक्ट से पहले हम एक सैंपल एग्जांपल लेते हैं, सैंपल प्रोजेक्ट बनाते हैं, उसको हम पायलट प्रोजेक्ट कहते हैं. फिर लेवरेज फॉरेन अलायंसेस, मेक आवर नेशन अमंग द लीडिंग कंट्रीज इन द पावर सिस्टम. कॉमन ऑब्जेक्टिव्स हैं जो कि हर प्रोग्राम में होते हैं. यू कैन राइट देम इवन योरसेल्फ. ठीक है, ये बहुत कॉमन से होते हैं. सिग्निफिकेंस ऑफ माहिर helps to achieve net zero emission. net zero हमने आपको बताया था when I was teaching योजना मैगजीन. net zero का मतलब ये नहीं होता है कि आपको अपने emissions बिल्कुल जीरो कर देना है. net zero का मतलब ये होता है कि आपको जितना आप emit कर रहे हो उतना आपको absorb करना है. ठीक है, तो आपका absorption जो है that must be equal to your emission, right? तो दैट इज व्हाट इज नेट जीरो. तो नेट जीरो अचीव करने में माहिर हेल्प करेगा, क्योंकि भाई क्यों, ये किस फील्ड पे काम कर रहा है? पावर एंड रिन्यूएबल एनर्जी पे. तो जितना रिन्यूएबल एनर्जी में रिसर्च एंड डेवलपमेंट होगा, नए सोर्सेज ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी आएंगे, उतना ही आप एमिशन को कम कर पाओगे और एमिशन को एब्जॉर्ब करने की टेक्निक्स डेवलप होंगी. ठीक है, सो इट विल हेल्प इन अचीविंग योर नेट जीरो एमिशन टारगेट्स. अपार्ट फ्रॉम दिस, मीटिंग द ग्रोइंग एनर्जी डिमांड्स, प्रमोट इनिशिएटिव लाइक मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, contribute towards achieving the United Nations Sustainable Development Goals. बहुत ही कॉमन सा सिग्निफिकेंस है, नथिंग मच टू एक्सप्लेन ओवर है. फंडिंग देख लो, इम्पोर्टेंट है. फंडिंग कहाँ से आएगी? पावर और एनआरई मिनिस्ट्रीज और जितनी भी सीपीएसई सेंट्रल पब्लिक सेक्टर यूनिट्स इंक्लूडेड हैं इनके साथ या एसोसिएटेड हैं इन दो मिनिस्ट्रीज के साथ, उनसे पैसा आएगा. और अपार्ट फ्रॉम इट द सेंटर्स बजटरी रिसोर्सेस, मतलब सेंटर जो स्कीम के लिए बजट में पैसा निकालेगी वो पैसा. ठीक है, फिर मिनिस्ट्री के फंड्स में से आएगा पैसा और आपके इनसे अटैच सीपीएसई से आएगा और बाकी बजटरी एलोकेशन जितना भी मिलता है स्कीम को. ठीक है, अप्रोच क्या होगी? टेक्नोलॉजी लाइफ साइकिल अप्रोच. दिस इज इंपॉर्टेंट. द टेक्नोलॉजी लाइफ साइकिल अप्रोच फ्रॉम एन आइडिया टू अ प्रोडक्ट. तो एक टेक्नोलॉजिकल लाइफ साइकिल जो अप्रोच होती है वो क्या होती है, ये समझने की कोशिश करते हैं. ठीक है, फ्री पेज कहाँ पर है? दिस इज अ फ्री एरिया. ओके, सो लेट्स सी वंस टेक्नोलॉजी लाइफ साइकिल अप्रोच क्या होती है. देखो, किसी भी चीज की एक लाइफ साइकिल होती है, ऐसे टेक्नोलॉजी की भी एक लाइफ साइकिल होती है. फ्रॉम एन आइडिया टू अ प्रोडक्ट. एक आइडिया आएगा, फिर उस पर ब्रेनस्टॉर्मिंग होगी. ब्रेनस्टॉर्मिंग में हम क्या देखेंगे? उस आइडिया से एसोसिएटेड पॉसिबिलिटीज देखेंगे, उस आइडिया से एसोसिएटेड प्रॉब्लम्स देखेंगे. ब्रेनस्टॉर्मिंग के बाद क्या होगा? एक ब्लू मैप तैयार होगा या एक प्रिंट आउट तैयार होगा. ठीक है, कि आपको उसको कैसे एग्जीक्यूट करना है. ठीक, फिर उसकी प्लानिंग होगी, फिर उस प्लानिंग के बाद क्या होगा? वो डिजाइन किया जाएगा, फिर उस डिजाइन के बाद वो प्रोडक्ट लॉन्च किया जाएगा. ये लॉन्च होगा पायलट बेसिस पे, सैंपल बेसिस पे. फिर इसको रिव्यू किया जाएगा, रिव्यू के बाद इसे इम्प्रूव किया जाएगा और इम्प्रूव के बाद फाइनल प्रोडक्ट लॉन्च होगा. तो ये होता है अ टेक्नोलॉजीज लाइफ साइकिल फ्रॉम आइडिया टू प्रोडक्ट. So this will work, the scheme will work on each and every stage starting from idea to the product, right? This will be the approach of this scheme. ड्यूरेशन देख लेते हैं. 5 साल की ड्यूरेशन है, फ्रॉम 2023-24 टू 27-28. स्ट्रक्चर टेक्निकल स्कोपिंग कमिटी चेयर्ड बाय सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी. रोल है टू आइडेंटिफाई एंड रिकमेंड पोटेंशियल टेक्नोलॉजीज फॉर डेवलपमेंट, मॉनिटरिंग ऑफ अप्रूव्ड प्रोजेक्ट्स. Apex committee chaired by Union Minister for Power and New and Renewable Energy. Role है to look into international collaborations, approve and monitor the research proposals, right? इसमें देखो बस देख लेना कि ये दो कमिटीज हैं, इन दो कमिटीज के क्या क्या रोल्स हैं.
वही इम्पोर्टेंट के केस में इफ यू आस्क मी तो इम्पोर्टेंट उतना नहीं है, सच यू मस्ट नो अबाउट द प्रोग्राम, प्रोग्राम किस फील्ड में ये आपको पता होना चाहिए। और मेंस आंसर राइटिंग के लिए आपको उसके ड्रॉबैक्स और बेनिफिट्स पता होने चाहिए बस। यू डोंट नीड टू नो द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ एनी प्रोग्राम, ठीक है। दूसरा है ये जो नए इनोवेशन हैं, जैसे एयर जेन क्या होता है, जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम एयर, मतलब फ्रॉम द एटमॉस्फेयर, वाटर वेपर जो प्रेजेंट होता है उससे हाइड्रो एनर्जी डेवलप करना, ठीक है। Microgrids, local energy grids which can operate freely or by staying connected to a bigger conventional grid. Power was designed to store your clean energy so you can use it anytime you want. Clean energy storage होते हैं ये। Vertical wind turbines capture the waves created by the passing vehicles, ठीक है। मतलब जरूरी नहीं है कि हम टर्बाइंस ही लगाएंगे तभी हम वहां से विंड कैप्चर करेंगे, या विंड मिल ही लगाएंगे तभी हम वहां से विंड कैप्चर करेंगे। मूविंग व्हीकल से भी, फास्ट मूविंग व्हीकल से भी उसको हम एज अ टर्बाइन यूज करेंगे। फास्ट मूविंग व्हीकल जो विंड को स्टर कर रहा है, हम उस विंड को भी कैप्चर करेंगे, ठीक है। सो दैट इज इन सारी टेक्नोलॉजीज पे सेपरेटली आई विल बी गिविंग अ वीडियो, सो डोंट वरी अबाउट इट। कवरेज, the proposals for outcome linked funding will be invited from companies, organizations across the globe, ठीक है। इसमें कुछ समझाने लायक नहीं। सिलेक्शन ऑफ द प्रपोजल वुड बी डन ऑन क्वालिटी कम कॉस्ट बेस्ड सिलेक्शन बेसिस, नथिंग मच टू एक्सप्लेन। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है पेटेंट पर, ठीक है। तो आईपीआर जो होगी, जो भी टेक्नोलॉजी डेवलप करेंगे ये लोग मिलके, उसका आईपीआर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास होगा, और जिस एजेंसी ने वो रिसर्च एग्जीक्यूट करी है उस रिसर्च एजेंसी के पास होगा, ठीक है। तो आईपीआर राइट्स जो हैं वो ज्वाइंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्लस रिसर्च एजेंसी के होंगे, ठीक। सो दैट इज एन इम्पोर्टेंट। आगे आ जाते हैं अदर इनिशिएटिव्स लॉन्च्ड इन दी पावर सेक्टर। देखो, बस इनिशिएटिव पता होना चाहिए, इनिशिएटिव किस पर्पस के लिए ये पता होना चाहिए। तो फाइनेंशियल इंसेंटिव्स टू स्टेट्स फॉर रिफॉर्म्स इन द पावर सेक्टर, इसमें क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने स्टेट्स को एडिशनल बोरोइंग अलाउ कर दी है ऑफ 0.25% to 0.5% of their GSDP annually for the reforms in power sector, ठीक। लेकिन ये बोरोइंग इन बेसिस पे दी जाएगी, इस एलिजिबिलिटी पे। पहली चीज, वो स्टेट रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा हो, डिस्कॉम्स के ऊपर जितने भी बर्डन्स आ रहे हैं, डिस्कॉम्स के जितने भी लॉसेस हो रहे हैं, उन लॉसेस को फुलफिल करने की वो स्टेट रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा हो। दूसरा, ट्रांसपेरेंसी इन द रिपोर्टिंग ऑफ फाइनेंशियल अफेयर्स ऑफ पावर सेक्टर, टाइमली रिटेंशन ऑफ फाइनेंशियल एंड एनर्जी अकाउंट्स एंड टाइमली ऑडिट, कंप्लायंस विद लीगल एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स। तो जो स्टेट ये 4 रिक्वायरमेंट्स फुलफिल करेगा, उसी स्टेट को ये छूट मिलेगी ऑफ 0.25% टू 0.5% ऑफ जीएसडीपी, वो अपना एक्स्ट्रा बोरोइंग कर सकता है फॉर रिफॉर्म्स इन दी पावर सेक्टर, ठीक है। 2021-22 के बजट में 4 ईयर के लिए ये रिफॉर्म्स दिए गए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। मार्केट कपलिंग, मार्केट कपलिंग, कपलिंग वर्ड का मतलब क्या होता है कि आप सेवरल इंस्टीट्यूशंस को एड अप करके आप एक कंप्लीट इंस्टीट्यूशन बना रहे हो, ये एक तरह से एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन बना रहे हो, ठीक। तो मार्केट कपलिंग में क्या हो रहा है, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ पावर हैज डायरेक्टेड द सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन टू इनिशिएट द प्रोसेस ऑफ मार्केट कपलिंग ऑफ पावर एक्सचेंजेस। फिलहाल इंडिया में 3 पावर एक्सचेंजेस, ठीक, 3 पावर एक्सचेंजेस हैं, इंडियन एनर्जी एक्सचेंज, पावर एक्सचेंज इंडिया लिमिटेड एंड हिंदुस्तान पावर एक्सचेंज इंडिया लिमिटेड, जिसमें इंडियन एनर्जी एक्सचेंज लिमिटेड को मोनोपोली स्टेटस है क्योंकि 90% शेयर इलेक्ट्रिसिटी मार्केट में इसके पास। तो अब गवर्नमेंट क्या कर रही है, इलेक्ट्रिसिटी को लाइक एक फीसिबल रेट में कस्टमर्स को प्रोवाइड कराने के लिए, एंड एज वेल एज ताकि ये जो फ्रीबीज वाले जो प्रॉमिस है, फ्री इलेक्ट्रिसिटी वाले, इन प्रोमिसेस को कुछ हद तक कर्व किया जा सके एंड इलेक्ट्रिसिटी मार्केट में रेशनैलिटी लाई जा सके, राइट। सो दे आर व्हाट दे आर डूइंग इज market coupling refers to forming of a single power trading entity wait for a second refers to the formation of a single power trading entity owned by the government. Under it, buy and sell bids from all power exchanges in the country will be aggregated and matched to discover a uniform power price or market clearing price. अभी क्या होता है, अभी IEX की मोनोपोली चल रही है, तो ये अपने अकॉर्डिंग ये प्राइसेस सेट करता है, ठीक। एंड ये प्राइसेस बाउंड हाई होते हैं
जिसकी वजह से ये जो फ्रीबीज होते हैं, प्रोमिसेस होते हैं, पॉपुलिस्ट प्रोमिसेस ऑफ फ्री इलेक्ट्रिसिटी, ये फ्रूटिफाई कर जाते हैं, राइट? सो मार्केट कपलिंग विल पेव द वे फॉर, sorry, market coupling is going to pave the way for one nation, one grid, one frequency, one price framework, right? The implementation of electricity derivatives in the market. ठीक, इलेक्ट्रिसिटी डेरिवेटिव से हम क्या समझते हैं? इलेक्ट्रिसिटी डेरिवेटिव्स बेसिकली डे टू डे ऑप्शंस होते हैं, डेली ऑप्शंस होते हैं, जो कि इलेक्ट्रिसिटी प्राइस में होते हैं, जिससे इलेक्ट्रिसिटी प्राइस फ्लक्चुएट करते हैं, राइट? तो कंपटीशन भी बना रहेगा एंड मेजर एक्सचेंजेस के प्राइसेस को कंपेयर करके एक प्रॉपर यूनिफॉर्म पावर प्राइस गवर्नमेंट डिसाइड कर पाएगी, राइट? So that is about market coupling. Then moving on to wait for a second. Moving on to guidelines for resource adequacy planning framework. Guidelines for resource adequacy planning framework. Now this is regarding the guidelines issued by Union Ministry of Power in consultation with the Central Electricity Authority have been framed under Rule 16 of the Electricity Amendment Rules 2022. Not at all important to be remembered. The guidelines aim to establish a resource adequacy framework for power procurement by distribution licensees, ensuring a reliable operation of the power system across all time frames. DISCOMs have the statutory obligation to ensure procurement of sufficient capacity to meet demand in their area. तो ये बेसिकली क्या करेगा, ये डिस्कॉम्स कितना पावर लाइक कितना पावर डिस्ट्रीब्यूशन डील करती हैं और उसके लिए वो कितनी पावर प्रोक्योर करती हैं, इन सारी चीजों को इट विल हैंडल. एंड बाय हैंडलिंग दिस, what are they aiming at? 24/7 reliable power supply at optimized electricity tariffs. ठीक, ताकि टैरिफ्स भी ऑप्टिमाइज रह सके और 24/7 इलेक्ट्रिसिटी भी दी जा सके. Provides a time-bound and scientific approach to assess the electricity demand for the future and take advance action to procure it. New generation capacities, energy storage, and other flexible resources needed to reliably meet future demand growth at optimal cost will be assessed well in advance. The capacity which the DISCOMs tie up shall be a judicious mix of long-term and short-term contracts to ensure security of supply to their consumers at least cost. Share of long-term contracts is suggest this is not at all important, and over-reliance on electricity market is to be avoided. This is an important point. कुल मिला के ये डिस्कॉम्स के प्रोक्योरमेंट और डिस्कॉम्स के एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन से डील करता है, ठीक है? रेशनलाइजेशन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन बाय डिस्कॉम्स. देन इलेक्ट्रिसिटी राइट्स ऑफ कंज्यूमर्स अमेंडमेंट रूल्स 2023. वही नॉर्मल से पॉइंट्स हैं. Notified by the government to provide reliable service and quality electricity. Rule seeks to ensure that new electricity connection are given in a time-bound manner. Willful disregard to consumer rights, penalties on service providers. So these are some of the points. ये थोड़ा सा important है. Electricity Rights of Consumers Amendments Rule 2023. Introduction of time of day tariff. Time of day tariff क्या है? पावर टैरिफ 16 आवर्स में, मतलब जब ऑलरेडी लाइट अवेलेबल होती है ड्यूरेशन ऑफ डे, उस समय 20% लेस पावर टैरिफ्स होंगे एंड 10 to 20% हायर पावर टैरिफ्स होंगे ड्यूरिंग पीक आवर्स, दैट इज व्हिच आर नॉन सोलर आवर्स ऑफ द डे. Enable consumers to reduce electricity bills. Amendment made in smart metering provision. Post installation of a smart meter, no penal charges will be imposed on the consumer based on maximum demand recorded by the smart meter for the period. मतलब इंस्टॉल होने के पहले जितना भी उसने रिकॉर्डिंग्स करी हैं तो उसके बेसिस पे it will not be, the consumer will not be charged. Okay, तो ये हो गया. अब coming on to our next topic, National Electricity Plan 2017 का प्लान है. अभी सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी, देखो नेशनल इलेक्ट्रिसिटी प्लान क्या होता है, ये सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटीज को लॉन्च करती है. ओके, एंड ये इलेक्ट्रिसिटी एक्ट के अंडर में मैंडेटेड है, जिसके अकॉर्डिंग वंस इन 5 years नेशनल इलेक्ट्रिसिटी प्लान लॉन्च करना होता है सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी. ठीक है, क्या होता है इस प्लान में?
इस प्लान में ये डिटेल्ड प्लान होता है, जो पिछले 5 साल का रिव्यू होता है, नेक्स्ट 5 इयर्स के लिए प्लान होता है, और उसके नेक्स्ट 5 इयर्स के लिए एक प्रोस्पेक्टिव प्लान होता है। फर्स्ट नेशनल इलेक्ट्रिसिटी प्लान 2007 में नोटिफाइड किया। तो इस प्लान में क्या क्या होता है? नेशनल इलेक्ट्रिसिटी प्लान में लास्ट 5 इयर्स का रिव्यू होता है, प्रेजेंट 5 इयर्स के लिए प्लान होता है, एंड एक प्रोस्पेक्टिव प्लानिंग होती है फॉर द नेक्स्ट 5 इयर्स। ठीक है, की हाइलाइट्स ऑफ एनईपी देख लेते हैं। ये डेटा उतना एज सच इम्पोर्टेंट नहीं है, थोड़ा मिनिमलिस्ट डेटा आप रिमेम्बर रख सकते हो, बट नॉट दैट मच, उतना नहीं चाहिए होता है आपको, क्योंकि इतना आप याद भी नहीं कर पाओगे। बस एनईपी क्यों लॉन्च किया जाता है, कौन लॉन्च करता है, क्या प्रोसीजर होता है, दैट इज इम्पोर्टेंट। की हाइलाइट्स राइजिंग एनर्जी डिमांड, ये तुमको पता ही है, नॉर्मल सा पॉइंट है। ठीक है, इंक्रीज ऑफ अराउंड 4.1% ड्यूरिंग द लास्ट डिकेड। ठीक है, and is expected to grow at 7.18% for the next 5 years. देखो CAGR जो लिखा है इससे डरना नहीं है, इसमें सिर्फ नॉर्मल सा होता है, इट इज कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट। कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट ये कुछ नहीं होता है, सिर्फ ग्रोथ मेजर करने का एक ज्यादा ही थोड़ा एफिशिएंट तरीका होता है। ठीक है, जब हम इकोनॉमी पढ़ेंगे तब इन डिटेल इस कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे, क्या होता है कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट। सॉरी, अभी बस व्हाट इज इम्पोर्टेंट फॉर यू इज कि एक मच एफिशिएंट तरीका है टू मेजर ग्रोथ। ठीक, फिलहाल 4.1% की रेट से बढ़ रही है डिमांड, आगे एक्सपेक्टेड है 7.18% की रेट से बढ़ेगी। ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो कि आप लिख सकते हैं। देन कमिंग ऑन टू इंस्टॉल्ड कैपेसिटी, उतना इम्पोर्टेंट पॉइंट नहीं है बिकॉज यू वांट टू बी रिमेम्बरिंग इट। ठीक है, इसमें इम्पोर्टेंट ये है कि जितनी भी इंस्टॉल कैपेसिटी है उसमें से 57.4% नॉन फॉसिल बेस्ड कैपेसिटी है। ठीक, सो दिस इज अ गुड डेवलपमेंट। इंस्टॉल्ड कैपेसिटी का लगभग 60% इज नॉन फॉसिल फ्यूल बेस्ड। ओके, कार्बन एमिशन, so average carbon emission rate from coal based stations has been on a declining rate trend. ठीक है, indicating improvement. Carbon emissions is on a declining trend. Contribution of renewable energy, installed capacity of renewable energy sources expected to contribute around 35% in the total energy mix by 2026-27 and around 44% by 31-32. ठीक, तो 26-27 तक it is expected to contribute, renewable energy is expected to contribute 35% to the entire energy production, और 2030-31 तक 31-32 तक is expected to be 44%. ठीक है, it's an important point but not that worth it. You can quote this report and write on the mains examination, means के लिए डेटा थोड़ा सा important हो सकता है। बाकी बेस्ट पार्ट तो ये होता है, while you are doing a prelims question you must remember कि कोई भी गवर्नमेंट रिलीज रिपोर्ट होगी तो उसने ऑलमोस्ट सारे पॉइंट्स अच्छे ही गए होंगे, इम्प्रूवमेंट ही शो करी होगी। ठीक है, energy efficiency and conservation, India has achieved a reduction in emission intensity or GDP by 24% over the period of 2005 to 2016. तो emission intensity मतलब how much amount of emissions we were doing. ठीक है, how much amount of emissions we were making. Reduce the emission intensity by 45% in 2030 against the levels of year 2005. ठीक है, आगे चलते हैं। ये सारा कोर डेटा है, नथिंग एल्स विद इट। पावर जनरेशन रिसोर्सेज हैं आपके, कन्वेंशनल सोर्स, एनआरई एंड स्टोरेज सोर्स, पंप स्टोरेज सिस्टम, बैटरी एनर्जी सिस्टम, नॉट मच इम्पोर्टेंट पॉइंट। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है। चैलेंजेस, चैलेंजेस क्या हाईलाइट किए इन्होंने? पहली चीज है इंटरमिटेंसी। क्यों? क्योंकि रिन्यूएबल एनर्जी का जो है वो आउटपुट अनसर्टेनिटी रहती है। सोलर एनर्जी नाइट में नहीं अवेलेबल होती है, विंड एनर्जी डे में उतनी अच्छी नहीं अवेलेबल होती है। ठीक है, तो ये जो आउटपुट अनसर्टेनिटी है ये इंटरमिटेंट प्रोडक्शन प्रोवाइड करता है, मतलब कॉन्टिन्यूस प्रोडक्शन नहीं हो पाता रिन्यूएबल एनर्जी का।
ठीक है, तो एक ये पॉइंट है. सेकेंड पॉइंट इज रिलेटेड टू इंटीग्रेशन विद द ग्रिड. Large scale addition of renewables into the grid will require balancing from other energy sources with fast ramp up and ramp down depending upon the grid requirement. क्योंकि बताया था इंटरमिटेंसी बहुत हाई होती है रिन्यूएबल एनर्जी में, तो ग्रिड से इंटीग्रेट करने में प्रॉब्लम आएगी कि आपको और एनर्जी रिसोर्सेज, अदर एनर्जी रिसोर्सेज से आपको कोलैबोरेट करना पड़ेगा, सो दैट जिस समय पर ये सोलर एनर्जी नहीं अवेलेबल है तो यू मस्ट हैव अ डिफरेंट एनर्जी सोर्स टू फंड दिस ग्रिड मैनेजमेंट. रिसोर्स एलोकेशन की बात करें तो लोकेशन स्पेसिफिसिटी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है कि आपको देखना पड़ता है सोलर एनर्जी किस एरिया में ज्यादा आएगी, विंड एनर्जी किस एरिया में ज्यादा आएगी. ओके, नेक्स्ट इज चैलेंजेस इन इंस्टॉलिंग रिन्यूएबल एनर्जी. Challenges in installing renewable energy. Now, what are the challenges? The challenges are almost the same in all kind of technologies. ठीक है, इसकी बात करेंगे अगर challenges की तो it's like operational issues हैं पहली बात तो. ठीक है, लैंड एक्विजिशन करना उन जगहों पे, फोटोवोल्टेइक पैनल डिस्पोजल, मतलब डिस्पोज ऑफ आप कहाँ करोगे, रेजिस्टेंस फ्रॉम अफेक्टेड कम्युनिटीज, जो भी कम्युनिटीज उसमें इन्वॉल्व होती हैं वो भी रेजिस्ट करेंगी इनिशियली उस चेंज को. ठीक है, फिर इश्यूज विद ग्लोबल सप्लाई चेन्स, supply of critical minerals and higher cost both for material and finance, a drastically changed climate with higher temperature droughts that can affect the hydro generation as well as it can also affect the wind power generation. ठीक है, रिहेबिलिटेशन एंड रीसेटलमेंट ऑफ पीपल जिनको आप हाइड्रो पावर प्लांट्स या सॉरी विंड जनरेशन के विंडमिल्स वाले एरिया से जो आप हटाओगे वहां के लिए आपको रिहेबिलिटेशन देखना पड़ेगा. ठीक है, फिर इश्यूज विद कार्बन कैप्चर टेक्निक्स. कार्बन कैप्चर टेक्निक्स बेसिकली होती हैं एब्जॉर्प्शन ऑफ एक्स्ट्रा कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एटमॉस्फेयर. ठीक है, सिंपल लेमैन टर्म्स में ये होता है एब्जॉर्प्शन ऑफ एक्स्ट्रा कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एटमॉस्फेयर, दैट फॉर्म्स द कार्बन कैप्चर टेक्निक्स such as high cost, large scale deployment, etc. Technologies for conversion of CO2 to useful products are also very costly and proprietary of few companies around the world, right? Further, challenges with the smart grid, information privacy and ensuring cyber security. क्योंकि smart grid आप AI enabled grid बनाने की कोशिश कर रहे हो जिसमें कि you will be storing a lot amount of data, जिसमें personal information भी involved होगी of people's residence as well as people's electricity consumption. ठीक है, so that will ensure that is very important that you ensure cyber security before using such a huge amount of data, before risking such a huge amount of data of the public, right? So moving on further. Wait for a second. Low quality of coal. Indian coal is of a low grade with ash content of the order 30 to 50%. ठीक, तो इससे क्या होता है, pollution ये ज्यादा बढ़ता है. Okay, as compared to the imported coals जिसका जो ash content होता है वो 10 से 15% होता है, इसीलिए imported coal ज्यादा important हो जाता है, right? Then further क्या देखना है हमें? So you are seeing how draining these magazine topics are. ठीक है, तो इसी वजह से जो एक्स्ट्रा वाले एडिशनल वाले टॉपिक्स हैं आई सेड कि वो डिफरेंट वीडियोस बना देंगे छोटे छोटे, तो आपके लिए वो कवर करना आसान हो जाएगा. ठीक है, मैगजीन के साथ करना अभी फिलहाल बस आप ये देख लो कि एक ओवरव्यू ले लो मैगजीन में क्या क्या चीजें न्यूज में रही हैं, उनको समझने के लिए आपको जो जो चाहिए होगा दैट आई विल बी एक्सप्लेनिंग ओवर इट. ठीक है, सो वेरियस इनिशिएटिव्स फॉर ग्रोथ ऑफ प्राइवेट सेक्टर, पावर सेक्टर, cooperative federalism, state energy efficiency index to help the states in monitoring their programs, universal electrification by schemes like Deen Dayal Upadhyay Gram Jyoti Yojana, Pradhan Mantri Sahaj Bijli Har Ghar Yojana, Unnat Jyoti by affordable LEDs to all, international cooperation, SARC framework for energy cooperation, MOU for BIMSTEC grid integration, energy conservation, enhancing energy efficiency in industries, implementation of perform, achieve and trade. Carbon market. Bureau of Energy Efficiency announced a national carbon market called the India Carbon Market. Growth of renewable energy, International Solar Alliance, One World, One Sun, One Grid, PM Kusum, Green Energy Corridors. ये सारे programs I will be describing in those 15 to 20 pages.
ठीक है. Fly ash utilization, mandatory use of fly ash based products and schemes of or programs. Example, Pradhan Mantri Gramin Sadak Yojana, Swachh Bharat Abhiyan. Way ahead, addressing challenges of the renewables with the grids. हाइब्रिड ऑफ सोलर एंड विंड एनर्जी. तो यहाँ सजेशन ये है कि देखो सोलर और विंड रिसोर्सेज कॉम्प्लीमेंट्री की तरह यूज किए जा सकते हैं, क्योंकि विंड जो है वो स्ट्रांग होती है ड्यूरिंग इवनिंग एंड नाइट, एंड सोलर एनर्जी से उस समय पावर कम मिलती है, लेकिन सोलर एनर्जी स्ट्रांग होती है ड्यूरिंग डे और उस समय विंड से हमें पावर कम मिलती है. So we can complement these resources. Hybridization reduces the variability and optimizes the utilization of land and transmission systems. Energy storage की बात करें तो storage plays a critical role in frequency regulation and maintaining stability and safety of the grid. Enables excess energy to be stored for consumption at a more convenient time. तो स्टोरेज इम्पोर्टेंट होती है क्यों? क्योंकि यही अश्योर करेगी कि आप हर समय रेगुलर अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर पा रहे हो कंज्यूमर को, इवन इफ दैट अमाउंट इज प्रोड्यूस्ड और नॉट, क्योंकि आपने उसको स्टोर करके रख रखा है. Then demand response, demand side management measures encourage the customers to maximize the use of variable renewable energy sources while supply is naturally high. Okay, so demand side management क्या करता है? It measures it encourages the customers to maximize the use of variable energy resources while the supply is natural. जब supply बढ़ी हुई होती है तो demand side interventions करके you can make the people use those technologies. For example, when wind and solar photovoltaic are producing more than the demand response can incentivize consumers to use more power during that time through appropriate price signals of low rates, thus helping shift the load and ensuring better utilization of generation resources. Promotion of off-grid renewable sector, as it is much more competitive with conventional power, as it avoids investments in transmission to remote location. Right? So now off-grid renewable sector मतलब आप grid से भी integrate करो, लेकिन from remote sectors या जो remote sectors है, remote locations है, वहां से भी we can attach it to the resources of renewable energy. Right? Cooperative federalism, by ensuring more alignment between central government and states on key energy efficiency related activities. Regarding private investment, measures should be taken to attract private investors and more funds should be allocated to support research and innovation activities in the renewable energy sector. Adoption of low water use technologies in solar photovoltaic innovations, methods like dry cleaning, robotic cleaning of panels need to be encouraged with the objective of reducing the water usage. Okay, so these were some of the way forwards. Simple से way forwards है, normally भी इनको quote कर सकते हो. Coming on to our next topic, production linked incentive schemes या PLI schemes. ठीक है, the government has now currently decided not to launch the PLI scheme for new sectors and will assess the need for course correction for some sectors. Government has decided not to launch PLI scheme for new sectors. ठीक है, PLI schemes को बीच में ये लोग बहुत तेजी से प्रमोट कर रहे थे और सेक्टर्स के लिए, तभी कुछ इसमें प्रॉब्लम्स देखी गई हैं जिसकी वजह से they are stopping now promoting sectors into the PLI. Okay, and now they will also look into the course correction या जिन भी sectors को वो PLI में include कर चुके हैं उसमें they will be again rebalancing those expenditures, right? So about PLI schemes, first introduced in March 2020, post COVID ये scheme लाई गई थी. It is a kind of special incentive scheme for the producers to promote manufacturing in multiple sectors. Okay, now incentives here are linked on incremental sales. What do you mean by incremental sales? Means the sales of your present financial year does not count, but the amount of increase in the sales from the previous financial years will count as an incremental sale. ठीक है, जैसे अगर आपकी last year की जो sale थी that was of 100 products, okay, and this year you are selling of 150 products. So this year you have an incremental sale of 50 products. ठीक, तो इन्होंने इंक्रीमेंटल सेल्स के टारगेट्स रखे. अगर आप वो इंक्रीमेंटल सेल का टारगेट अचीव कर रहे हो तो यू आर बीइंग बेनिफिटेड अंडर PLI. सो दिस वाज इन अ वे प्रमोटिंग डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग, क्योंकि आपसे इंक्रीमेंटल सेल्स डिमांड की जा रही है, राइट? सो PLI scheme is built on the
foundation of multiple sectors with an incentive outlay of rupees 1.97 lakh crores to strengthen their production capabilities and help create global champions. ठीक, तो अब पहले benefits देख लेते हैं स्कीम के क्या थे. It was to strengthen the manufacturing sector. Told you, क्योंकि it is directly proportional to incremental turnover, so it will lead to capacity expansion. क्योंकि definitely if a company is producing more, it is actually expanding its capacity and expanding its stronghold in the economy. ठीक है, PLI can significantly restructure India's domestic manufacturing, push its share in the GDP to 25%. This is something that was expected of PLI, but this is not something that is being fructified. Later, we will see why. It is also expected to bring improvements in industrial infrastructure, benefiting overall the supply chain ecosystem. Coming on to capital expenditure, the implementation of the PLI scheme will lead to a potential capital expenditure of rupees 2.5 to 3 lakh crore over the scheme period. ठीक है, तो ये केपेक्स को भी बढ़ाएगा. केपेक्स के क्या बेनिफिट्स होते हैं हमने देख लिया था. क्यों? क्योंकि PLI स्कीम के अंदर मैन्युफैक्चरिंग स्ट्रांग होगी तो इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलप होगा. इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा तो एक परमानेंट असेट बनेगा फॉर द गवर्नमेंट. ठीक है. Moving on further, it will account for 13 to 15% of average annual investment spending in key industrial sectors. ठीक, तो ये केपेक्स स्पेंडिंग ही है. Spur green investments. Nearly 55% of the scheme expected to be in green sectors such as electric vehicles, solar photovoltaics, etc. Self-reliance and increase in exports. PLI schemes intend to plug the gap between the highly skewed Indian import-export basket, which is mainly categorized by heavy imports of raw materials and finished goods. Self-reliance and increase in exports, the PLI schemes tend to plug the gap between the highly skewed Indian import-export basket, which is mainly categorized by heavy imports of raw materials and finished goods. So import dependency हमारी जो है वो कम होगी और हमारी self-reliance promote होगी. It will help in offsetting the effects of geopolitical conflicts and their consequent impact on food, fertilizer and crude oil prices. जैसे अभी recently Russia-Ukraine conflict ने फूड और फर्टिलाइजर के लिए जो इंपोर्ट्स एक्सपोर्ट्स थे उनको काफी हाई लेवल्स तक वो किया था, अफेक्ट किया था. Then coming on to faster adoption of technology, now since they will work on incremental sales, तो अपनी सेल्स बढ़ाने के लिए they will bring in new technologies. ठीक, तो टाइमली इंटरवेंशन हो जाएगा एंड फास्टर अडॉप्शन होगा 4G और 5G लाइक प्रोडक्ट्स अक्रॉस इंडिया. Reducing regional imbalances in development. Regional imbalances की वजह से हर कंपनी का या हर फर्म का जो इन्वेस्टमेंट पोटेंशियल होता है वो डिफर करता है. लेकिन सिंस गवर्नमेंट विल बी गिविंग इंसेंटिव्स टू दीज इंडस्ट्रीज, तो वो इन्वेस्टमेंट पोटेंशियल जो है वो रीजनल इम्बैलेंसेस आप हटा सकते हो, राइट. Others, PLI scheme will utilize India's abundant human capital and enable upskilling of labor force. It will replace technologically obsolete machinery and make the manufacturing sector globally competitive. Better productivity will create a trust in free trade agreements for better market access. Okay. अब आते हैं भाई challenges के, क्योंकि हमारी न्यूज क्या आती है कि गवर्नमेंट ने PLI से हाथ खींचना शुरू कर दिया है. ओके, PLI के आगे वो फर्दर और सेक्टर्स PLI में ऐड नहीं कर रहे हैं. So why they are doing so? Number one is ambiguity around the incentives. The manner in which the incentives are to be awarded remains ambiguous. There are no set criteria or common parameters for considering or giving these incentives. Understood? कोई set criteria और parameters नहीं है जिसके अंडर में ये incentives देंगे. इन्होंने बस इतना कहा है कि incremental sales पर देंगे. अब वो incremental sales आप किसी भी means से बना रहे हो, क्या पता आप सिर्फ अपने जो ऑफिशियल बुक्स है उसमें आप इंक्रीमेंटल सेल्स दिखा रहे हो, बट दे आर नॉट एक्चुअली इंक्रीमेंटल सेल्स. तो कुछ क्राइटेरियाज और रेगुलेशंस नहीं रखे गए थे जिसकी वजह से इसकी जो एम्बिग्यूटी है वो ज्यादा हो जाती है और कुछ क्लैरिटी नहीं है ओवर हाउ द इंसेंटिव्स आर गोइंग टू बी अवॉर्डेड. देन इट फेल्ड टू कैप्चर द क्रिटिकल फैक्टर्स. देखो, मैन्युफैक्चरिंग की जो एफिकेसी है वो डिपेंड करती है आपके रॉ मटेरियल्स पे, डोमेस्टिक मार्केट के साइज पे, अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम मैन्युफैक्चरर्स पे, बट ये सारी चीजें इसमें अकाउंट नहीं की गई. इन्होंने बस इतना कहा है सिर्फ आपको इंक्रीमेंटल सेल्स करनी. जरूरी थोड़ी ना कि हर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री इंक्रीमेंटल सेल्स को पॉसिबल कर सके, बिकॉज उसके पास तो रिसोर्सेज नहीं है, राइट. सो दस प्रोडक्शन सब्सिडीज टू स्केल सेक्टर स्पेसिफिक मैन्युफैक्चरिंग
will not work until other critical factors shaping the ecosystems are understood and factored in. Also, some of these schemes have been designed to accommodate as many players as possible, or 15 in many cases, rather than few champions. तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने PRI के अंडर में टारगेट बनाने के लिए इन्होंने as many schemes as possible इंक्लूड करने की कोशिश की, rather than a few champions. It may create a subsidies dependent manufacturing industry. This is very important. ये कर क्या रही है, ये एक तरीके से क्या कर रही है कि एक सब्सिडी दे रही है और उस सब्सिडी के बेसिस पे उस मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को बढ़ा रही है. लेकिन जैसे ही ये सब्सिडी विड्रॉ कर लेती है गवर्नमेंट, वैसे ही ये मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री फिर से फेल हो जाएगी, क्योंकि ये गवर्नमेंट सब्सिडी पर ही चल रही है, राइट. सो विड्रॉइंग ऑफ दीज बेनिफिट्स एट लेटर स्टेज में अल्टीमेटली लीड टू इंडस्ट्रियल इनएफिशिएंसी एंड engender a decline in productivity both at sectoral and firm level. Greater orientation towards larger firms. Beneficiaries under these schemes such as automobiles, electronics, and technical textiles are largely constituted by big firms. ठीक है, तो लार्जर फर्म्स की तरफ ओरिएंटेशन ज्यादा जा रहा है, क्योंकि इन्होंने जो सेक्टर्स इंक्लूड किए हैं इसमें, ऑटोमोबाइल सेक्टर, इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर, टेक्निकल टेक्सटाइल सेक्टर, ये सारे बिग फर्म्स होल्ड करते हैं इसको, स्मॉल फर्म्स नहीं होल्ड करते. Actually, they are not promoting any kind of global champions from small scale. ठीक है, so this is not representative of actual configuration of Indian industrial structure, which is largely composed of MSMEs. फिर लास्ट पॉइंट है आपका डिफिकल्टीज इन इवैल्यूएशन. लैक ऑफ अ सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस दैट कैप्चर्स इंफॉर्मेशन लाइक इंक्रीज इन प्रोडक्शन और एक्सपोर्ट्स मेड द इवैल्यूएशन प्रोसेस डिफिकल्ट. ठीक है, ये पॉइंट था जो आई हैव एक्सप्लेन्ड यू. वे फॉरवर्ड में वही नॉर्मल से पॉइंट्स हैं, यू कैन जस्ट गिव अ रीडिंग टू देम. ठीक है, आई डोंट थिंक आई नीड टू डिस्कस इट ओवर हियर. वही सारी दिक्कतें जो जितने भी इश्यूज थे उनको रिजॉल्व करने के लिए पॉइंट्स दे दिए. Now coming on to our next topic, fertilizers sector in India. These are very important facts for your prelims. India is the second largest fertilizer consuming country after China, and the third largest producer of fertilizer. Among the world's largest importer of fertilizer material. These are some of the facts that you need to remember. ये पूछती है UPSC fertilizer sector से related facts उसने पूछे हैं PYQs में. When sir will be dealing with your prelims PYQs, he will be solving those questions with you. ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपने टॉपिक पे हम. Recently, the Cabinet Committee on Economic Affairs has approved a unique package of innovative schemes for farmers with a total outlay of rupees 3.70 lakh crores. कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स ने फार्मर्स के लिए कुछ इनोवेटिव स्कीम्स लॉन्च कर दी हैं विद अ टोटल आउटले ऑफ 3.70 लाख करोड़. देख लेते हैं व्हाट आर दी अप्रूव्ड स्कीम्स. फर्स्ट इज पीएम प्रणाम. See, they have a long amount of full forms. Soon we will devise a tactics to learn these full forms and let you know. इंडिया में प्रोग्राम से ज्यादा फुल फॉर्म्स पे फोकस किया जाता है. Okay, so we will see. कुछ ना कुछ तरीका इसका भी निकालेंगे. We'll be uploading it on the channel itself. कैसे ये याद करना है, कोई निमोनिक्स बनाएंगे. We'll be having some interconnection procedures. ठीक है, देखते हैं उसको. फिलहाल तो let's see what's all about in these programs. देखो सब में फुल फॉर्म्स. Okay, प्रणाम. PM प्रणाम. PM program for restoration, awareness generation, nourishment and amelioration of mother earth. इतना काम नहीं करेंगे इसमें जितना बड़ा इन्होंने फुल फॉर्म बना रखा है. Announced in budget 2023-24 to incentivize states or UTs to promote alternate fertilizers and balanced use of chemical fertilizers. Alternate fertilizers मतलब अभी हम लोग जो यूज करते हैं, they are urea fertilizers.
अब क्योंकि ये केमिकल फर्टिलाइजर्स हैं तो दे आर डेंजरस ऑल्सो, और ये लैंड को डिग्रेड भी करते हैं ओवर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। तो इसकी जगह इट इज टू प्रमोट ऑल्टरनेट फर्टिलाइजर्स एंड टू प्रमोट बैलेंस्ड यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स। ठीक, दूसरी स्कीम जो है दैट हैज बीन 1452 crores had been approved for market development assistance for promoting organic fertilizers from Govardhan plants, galvanizing organic bio-agro resources than plants. It was launched in 2018 under the Swachh Bharat Mission Gramin to positively impact village cleanliness and generate wealth and energy from cattle and organic waste. ठीक, सो मार्केट डेवलपमेंट असिस्टेंस फॉर दिस गोवर्धन प्लांट्स 2018 में जो स्कीम लॉन्च की गई थी दैट वाज टू डेवलप ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स फ्रॉम द ऑर्गेनिक वेस्ट that was created in the villages, right? Now अब इस स्कीम के मार्केटाइजेशन के लिए या स्कीम की मार्केट प्रमोशन के लिए मार्केट डेवलपमेंट असिस्टेंस हैज बीन ब्रॉट इन। थर्ड स्कीम जो है दैट इज introduction of sulfur coated urea or urea gold. Introduction of sulfur coated urea or urea gold for the first time to address the sulfur sufficiency of soil and save input cost for farmers. नीम कोटेड यूरिया हम यूज करते थे एज अ डिसइंफेक्टेंट, मतलब उस यूरिया फर्टिलाइजर पर वी यूज टू ऐड द कोट ऑफ नीम, ठीक, बट ये मच कॉस्टली होता था एंड मोर ओवर इट वॉज जस्ट एन एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। ठीक, जबकि सल्फर वी विल सी व्हेन वी स्टडी बायोलॉजी फॉर दिस, तब हम देखेंगे कि सल्फर जो होता है वो प्लांट ग्रोथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट होता है, और सल्फर की कमी की वजह से प्लांट्स आर रिजल्टिंग इनटू डार्क प्लांट्स और दे आर बिकमिंग प्लांट्स विदाउट सीड्स और विदाउट एप्रोप्रिएट फ्रूट्स। ठीक है, तो सल्फर डेफिशिएंसी को एड्रेस करने के लिए हम पहली बार सल्फर कोटेड यूरिया इंट्रोड्यूस कर रहे हैं विच इज आल्सो नोन एज यूरिया गोल्ड। इट इज मोर इकोनॉमिकली एंड एफिशिएंट देन द करंटली यूज्ड नीम कोटेड यूरिया। फिर आते हैं यूरिया सब्सिडी स्कीम। सेंट्रल सेक्टर स्कीम हैज बीन एक्सटेंडेड for another 3 years till March 2025 to maximize indigenous production of urea to reach self-sufficiency levels by 2025-26। यूरिया सब्सिडी स्कीम को एक्सटेंड कर दिया गया है 2025 तक के लिए। ठीक है, so these are the schemes that are revitalized with some extra budgetary allocations to them and some changes in them that have been brought in. The next is this box, initiatives taken for efficient use of fertilizers. One nation, one fertilizer scheme was announced by Ministry of Chemicals and Fertilizers under fertilizer subsidy scheme named Pradhan Mantri Bharatiya Jan Urvarak Pariyojana to ensure timely supply of fertilizers. Nano urea plants set up to boost productivity and help increase their income. Fertilizer flying squads was constituted by Department of Fertilizers to stop diversion and black marketing of fertilizers. Nutrient-based subsidy scheme. Under this, a fixed rate of subsidy in rupees per kg is announced on nutrients, namely nitrogen, potassium and phosphate and sulfur by the government on annual basis. It is applicable to 22 fertilizers other than urea, for which MRP will be decided taking into account the international and domestic prices of potassium and phosphorus fertilizers, exchange rate and inventory level in the country. तो न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी स्कीम का मतलब क्या है? किसी भी फर्टिलाइजर के तीन जो मेन न्यूट्रिएंट्स होते हैं, यूरिया फर्टिलाइजर के जो तीन मेन न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो होते हैं एनपीके, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम या पोटेशियम। तो इन तीनों एलिमेंट्स की प्रेजेंस के बेसिस पर सब्सिडी दी जाएगी। ठीक, ऐसे नहीं दी जाएगी कि नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर्स को सबको एक ही तरह की सब्सिडी, जितना इनका प्रेजेंस होगा, नाइट्रोजन का जितना प्रेजेंस होगा, पोटेशियम का जितना प्रेजेंस होगा, फॉस्फेट का जितना प्रेजेंस होगा, उस प्रेजेंस के बेसिस पे इनको सब्सिडी दी जाएगी। ठीक है,
Then soil health card scheme provides crop-wise recommendations of nutrients and fertilizers required for the individual farms. ठीक है. So this is all filled up with certain schemes. इन schemes को आपको याद रखना है सिर्फ इस पर्पस से कि कितनी schemes हैं, मीन्स कौन कौन सी schemes हैं और उनकी क्या क्या पर्पसेस हैं, राइट. बस इतना ही याद रखना है, नथिंग मोर देन दैट. बजट आउटले हमें याद नहीं रखना होता है, बस इतना याद रखना है वो स्कीम किस मिनिस्ट्री के अंडर में है और उस स्कीम का पर्पस क्या है. ठीक है. Significance of approved group of schemes focused on overall well-being and economic betterment of farmers. फिर वही normal से points आ गए. You can write them on your own. Boost farmers' income, better utilization of crop residue like parali will help to resolve air pollution, improve cleanliness, and convert waste. ठीक है, these are all common points. Next is your fertilizer industry in India. This is important. Fertilizers are materials used to provide plants with nutrients which are deficient in soils. Okay, the fertilizers are the materials that are used to provide plants with such nutrients which are otherwise deficient in soil. It is a chemical product which is either mined or manufactured. It is one of the 8 core industries. Core industries क्या होती हैं? इंडिया में 8 core industries कही जाती हैं. इनमें से एक है फर्टिलाइजर. Write in the comment section down what are the other 7 core industries of India apart from fertilizer. इतना सारा हमने पढ़ा दिया. Let me check how much are you studying from your side. Core industries बता दो. बाकी जब इकोनॉमी का स्टैटिक हम पढ़ेंगे तो there I will be telling you in detail. Urea accounts for over 2/3 of overall fertilizer consumption. Requirement of potash is met through imports. ठीक है, this is an important point. The part of fertilizers that we import is potash. This was a previous year question. ठीक है. Fertilizers are classified as primary, secondary, and micronutrients. Primary fertilizers are usually on these 3 elements: nitrogenous or phosphatic or potassic fertilizers. Secondary fertilizers include calcium, magnesium, sulfur, while micronutrient fertilizers include iron, zinc, boron, chloride, etc. So these are divided on the basis of nutrient requirement of the plants. The basis of nutrient requirement of the plants. नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम उन्हें हाई अमाउंट में चाहिए होता है, इसलिए वो प्राइमरी फर्टिलाइजर्स हैं. सेकेंडरी होते हैं कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, कंपैरेटिवली कम अमाउंट में चाहिए होती है. और आयरन, जिंक, बोरॉन और क्लोराइड ये माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो कि प्लांट को बहुत ही मिनिमलिस्ट अमाउंट में चाहिए होता है, राइट. इन्हीं 3 हिस्सों में हम फर्टिलाइजर्स को बांटते हैं. कंसर्न्स एसोसिएटेड विद द फर्टिलाइजर्स इन इंडिया वही है, अगेन सेम थिंग्स. सॉइल डिग्रेडेशन हो जाता है, ठीक. एनवायरमेंटल पॉल्यूशन. दे कंट्रीब्यूट टू यूट्रोफिकेशन. यूट्रोफिकेशन कॉन्सेप्ट क्या है? ये एनवायरमेंट जब सर विल बी डीलिंग, ही विल बी एक्सप्लेनिंग यू इन डिटेल क्या है ये कॉन्सेप्ट. अभी फिलहाल के लिए क्या होता है, जब न्यूट्रिएंट्स बहुत ज्यादा हो जाते हैं, न्यूट्रिएंट्स बहुत ज्यादा हो जाते हैं किसी भी वाटर बॉडी में, तो क्या होता है, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उस वाटर बॉडी में वो बहुत हाई स्पीड पे मल्टीप्लाई करते हैं. माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो जाते हैं या वीड्स हो जाते हैं जो अननेसेसरी प्लांट्स होते हैं, ये बहुत हाई रेट पर ग्रो करते हैं. होता क्या है, इनकी पॉपुलेशन जितनी नीडेड है उससे ज्यादा डेवलप हो जाती है उस वाटर बॉडी. तो दिस लीड्स टू द डेथ ऑफ मरीन ऑर्गेनिज्म. तो हेल्दी ऑर्गेनिजम्स की डेथ होने लगती है, ठीक. यही होता है यूट्रोफिकेशन. एक्सेसिव न्यूट्रिएंट्स जब आ जाते हैं वाटर बॉडीज में. कैसे आते हैं एक्सेसिव न्यूट्रिएंट्स? क्योंकि हम फर्टिलाइजर जो डालते हैं वो सॉइल में डालते हैं, सॉइल से वाटर रन ऑफ होके कहाँ जाता है, वाटर बॉडीज में जाता है, ठीक. दैट इज. Then nitrogen-based fertilizers emit nitrous oxide, a potent greenhouse gas. Human health related
इश्यूज आते हैं, रेस्पिरेटरी डिसीजेज आती हैं, रिस्क ऑफ कैंसर इन एडल्ट्स, कंटामिनेटेड ड्रिंकिंग वाटर, ठीक है। फिस्कल बर्डन, क्योंकि गवर्नमेंट सब्सिडाइज फर्टिलाइजर प्रोवाइड करती है, तो ह्यूज फिस्कल बर्डन। टोटल फर्टिलाइजर सब्सिडी stood at 1.62 lakh crores in 2021-22. Promoting inefficiency, the subsidy received by a firm is determined by its cost of production. The greater the cost, the larger the subsidy. As a consequence, inefficient firms with high production costs survive and the incentive to lower cost is blunted. क्योंकि जितना आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होता है उतनी हाई आपको सब्सिडी मिलती है। अब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन किस फर्म का हाई होगा? जो फर्म अभी नई नई है, उसके पास ज्यादा सेटअप नहीं है, उसके पास ज्यादा टेक्नोलॉजी नहीं है, तो उसका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हाई होगा, तो डेफिनेटली उसको सब्सिडी ज्यादा मिल जाती है। इससे होता क्या है, जो एफिशिएंट फर्म्स हैं वो डिग्रेड हो जाती है, क्योंकि उनको सब्सिडी मिलती नहीं, क्योंकि वो कम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पे प्रोड्यूस कर दे रही है। Right, import dependency. India is the top importer of urea. Imports are on average 7 million tons of its annual diammonium phosphate needed to feed its huge agricultural sector. Limited awareness, lack of soil testing and scientific application of fertilizer, along with lack of awareness with respect to the balanced use of nutrients, leads to indiscriminate use. इसी के लिए लाया गया है soil health card, जो कि soil की जो scientific structure है उसको स्टडी करके बता दे कि इस सोइल में कितने न्यूट्रिएंट्स रिक्वायर्ड है। ठीक, आइडियल एनपीके यूज रेशियो फॉर द कंट्री इज 4:2:1. However, in the 2022 kharif season, the overall ratio got distorted up to 12.8:5.1:1. Okay, this is very high, and again this will create back those environmental issues, health issues. इम्पोर्ट डिपेंडेंसी भी बढ़ाएगा, क्योंकि उतनी ज्यादा इम्पोर्ट हमको करना पड़ेगा, जबकि उतना वेस्ट हो रहा है, सॉइल को उतना नहीं चाहिए। ठीक, वे अहेड अगेन द सेम पॉइंट्स, एफिशिएंट यूज, प्रमोट लोकल प्रोडक्शन, सस्टेनेबिलिटी, सॉइल टेस्टिंग, अवेयरनेस, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। ठीक है, आ जाते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, रेगुलेशन ऑफ स्टार्टअप इकोसिस्टम्स। रेगुलेशन ऑफ स्टार्टअप इकोसिस्टम्स, ये टॉपिक और कर लेते हैं, तो दिस इज द लास्ट टॉपिक ऑफ द डे, बिकॉज आई थिंक द वीडियो इज गोइंग वेरी लॉन्ग इनफ, मोनोटोनस हो जाएगा आपके लिए। इकोनॉमी में काफी सारे टॉपिक्स हैं, तो रश थ्रू करने का कोई मतलब भी नहीं है। यही तक करते हैं, फिर आगे के टॉपिक्स और शॉर्ट्स वाले विल बी सेइंग टुमारो इन द नेक्स्ट वीडियो। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। Recently, the experts have pointed out that self-regulation is essential for the startup environment to thrive. Self-regulation is essential for the startup environment to thrive. How? India startup ecosystem देखते हैं। Startup refers to a company in the initial stages, company in the initial stages of its operations, which is driven by ideas and innovation, risk taking and a can-do spirit. अगर हम इकोनॉमिक डेफिनेशंस में देखें तो शायद अप टू 5 years या अप टू 10 years एक कंट्री को हम स्टार्टअप कहते हैं। आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, शायद या तो अप टू 5 years है या तो 10 years। आई विल बी कंफर्मिंग दिस इन टुमारोज लेक्चर। तो एक कंपनी जो अपने इनिशियल स्टेजेस ऑफ ऑपरेशन में होती है, दैट इज रेफर्ड टू एज स्टार्टअप। Status of India's startup ecosystem. India is the third largest startup ecosystem in the world. 80,000 Department of Industry and Department of Promotion of Industry and Internal Trade, DPIIT, recognized startups, including 100+ unicorns. Unicorns are the fast growing startups. Very fast growing startups. For tech startups, India is the second largest ecosystem. वैसे India is the third largest startup ecosystem, but for technological startups, we are the second largest startup ecosystem. Around 40% of the startups are in tier 2 and tier 3 cities. Why startup culture is essential? It promotes ideas, innovation and research, develop backward and forward linkages, wealth creation through future scale-ups,
fulfillment of societal needs in areas like affordable healthcare, education, etc. Stimulate domestic investment, right? Next आते हैं government efforts to develop this ecosystem. Startup India and Stand Up India. Startup India Seed Fund Scheme to provide early stage assistance. Fund of Funds for Startup Scheme. Onboarding of startups on government e-marketplace. What is this government e-marketplace? It is a kind of e-marketplace, or you can call a kind of e-vendor. Okay, where government includes a government adds all the public sector entities and providing the new startups as well as new MSMEs to take part in this market. एक तरीके से आप कह लो इनको ये डिजिटल मार्केट है गवर्नमेंट के द्वारा एस्टैब्लिश की गई, ठीक है. Providing global market access through intergovernmental cooperation, support for IPR protection with fast-track patents and simplified rules. Moving on to next, regulation of startup ecosystem in India. So how is the startup ecosystem in India regulated? Ministry of Corporate Affairs (MCA) has defined a startup through an executive order under the Companies Act 2013 and gives few operational and compliance relaxation for a startup company. तो important point यहाँ पर ये है कि ये एक defined concept है. Companies Act 2013 के अंडर में defined है कि startup हम किसे कहते हैं. Department of Promotion of Industry and Internal Trade recognizes the business as startup as part of Startup India. This recognition grants tax exemptions for 3 years. तो 3 साल के लिए उस कंपनी को टैक्सेस नहीं पे करने पड़ते. They are exempted from any kind of income tax from their startup. Okay. SEBI notifies rules for listing startups. स्टार्टअप की जो लिस्टिंग्स हैं वो कौन देखता है? सेबी देखता है. RBI has created a dedicated helpline for startups in India to offer assistance for undertaking cross-border transactions within the ambit of regulatory framework. So what RBI does is, RBI has made up a helpline for the startups so that it could provide assistance to these startups in undertaking the cross-border banking or financial transactions within the ambit of regulatory framework of the RBI. Now, what are the issues in the regulations of startup? पहला issue है regarding incorporation. Incorporating a company in India is a complex and time-consuming process, taking 2 to 3 months on an average, unlike Singapore's 2-day average. तो हमारे यहाँ किसी स्टार्टअप को एंट्री देने के लिए 2 से 3 मंथ्स का समय लग जाता है पूरे रेगुलेटरी प्रोसेस और सारे फॉर्मेलिटीज को पूरा करने में. लेकिन उसके कंपैरिजन में सिंगापुर जैसी कंट्री में 2 दिन के अंदर एक स्टार्टअप अप्रूव हो जाता है, राइट. तो पहली चीज तो इनकॉर्पोरेशन से रिलेटेड है. दूसरी चीज आती है आपके कंप्लायंस बर्डन. ड्यू टू कॉम्प्लेक्स कंप्लायंस मैकेनिज्म फॉर ऑब्टेनिंग लाइसेंसेस, परमिट्स एक्सेट्रा, इट इज टाइम कंज्यूमिंग एंड रिसोर्स इंटेंसिव. ठीक है, काफी सारा रिसोर्स एग्जॉस्ट हो जाता है, टाइम एग्जॉस्ट हो जाता है. सो दिस डिस्करेजेस द स्टार्टअप इकोसिस्टम. ठीक, इतने सारे लाइसेंसेस, डॉक्यूमेंट्स, परमिट्स अब हमें अप्रूव कराने पड़ते हैं. इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम एंड रिसोर्स ऑन द पार्ट ऑफ द like owner of that startup. Okay. Regulation. Startups in India face regulatory challenges such as dispute resolution due to frequent policy changes, etc., making it difficult for the startups to plan and operate their businesses effectively. Right. So regulatory changes हैं, regulatory challenges हैं startups के आगे regarding their dispute resolution, and there are frequent policy changes. Government makes ambiguous policy changes. Okay, that is due to some political interventions of the government. That is not of our concern. लेकिन government एकदम से कुछ frequent changes कर देती है policy में, जिसकी वजह से regulatory challenges startup के लिए बढ़ जाते हैं. Okay, then lack of funding. Indian startups early stage encounter funding issues as venture capital firms target established startups. Okay, तो देखो
पहले जब इनिशियल स्टेज में किसी स्टार्टअप को स्टार्ट किया जाता है तो उन्हें सबसे बड़ा इशू आता है फंड करने का, क्योंकि वेंचर कैपिटल फंड जो मिलता है ये वैसे नए वेंचर्स के लिए होता है, लेकिन ये एस्टैब्लिश्ड फर्म को ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं। ठीक है। Also, funding new businesses in India is difficult due to financial restrictions like prohibition on raising funds through convertible notes, limits on FDI in certain sectors, right? So these reasons are some regulatory reasons are responsible for it, that India cannot invite that amount of funding in these startups. Then intellectual property startup face challenges in protecting their IPRs. As enforcement of IPR is time consuming and costly, and startups may face difficulty in combating infringement disputes. Startups किसी भी फील्ड में आते हैं तो उस फील्ड में there is monopoly of certain companies. अब अगर कोई स्टार्टअप स्टार्ट हो रहा है तो वो एक पब्लिक प्लेटफॉर्म के थ्रू स्टार्ट होता है, उस पब्लिक प्लेटफॉर्म पे वो अपना आईपीआर प्रोटेक्ट नहीं कर पाता है, उसका मटेरियल या उसका प्रोजेक्ट कोई भी अगर एक बड़ा मोनोपोलिस्ट अगर उसको कैप्चर करके अपने कंपनी में यूज कर ले तो उसको प्रोटेक्ट नहीं कर पाता एक स्मॉल स्टार्टअप ओनर। ठीक है, क्यों नहीं कर पाता? क्योंकि एनफोर्समेंट ऑफ आईपीआर एक टाइम कंज्यूमिंग और कॉस्टली प्रोसेस। Coming on to taxation, despite tax benefits to startups, they face issues related to tax compliance, especially when it comes to issues such as transfer pricing, valuation of shares, taxation of angel investments, etc. तो टैक्स बेनिफिट्स उनको दिए गए हैं अप टू 3 years। ठीक, केपीआईआईटी 3 साल तक उनसे किसी तरह का टैक्स नहीं लेती। ठीक, लेकिन आफ्टर 3 years when they are taxed, so they are facing issues such as transfer pricing, valuation of their shares, and the taxation of angel investments. Angel investments वो investments होती हैं जो unknown लोग आपके स्टार्टअप में आके इन्वेस्ट कर रहे होते हैं। तो एक तरीके से what these are they are the anonymous investments, लेकिन इस पर भी टैक्स लग जाता है। अपार्ट फ्रॉम दिस, वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स, जितने शेयर्स उस कंपनी के डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स पर भी स्टार्टअप पे टैक्सेस लगना स्टार्ट हो जाते हैं। एज रिगार्ड्स ट्रांसफर प्राइसिंग क्या होता है? जो दो कंपनीज के बीच में या दो फाइनेंशियल एंटिटीज के बीच में गुड्स, सर्विसेज या आईपीआर को लेके जो भी ट्रेडिंग होती है, राइट, जितने भी ट्रांजैक्शंस होते हैं, लाइक दिस इज फर्म ए एंड दिस इज फर्म बी, इनके बीच में गुड्स को लेके, सर्विसेज को लेके या आईपीआर को लेकर जितने भी ट्रांजैक्शंस होते हैं, इन सारे ट्रांजैक्शंस पे कुछ अमाउंट ऑफ टैक्स लगता है या प्राइसिंग लगती है। तो ये भी स्टार्टअप्स को फेस करना पड़ता है। तो ये जो मल्टीपल टैक्सेशन रिजीम्स है, दिस ऑल्सो स्टैंड एज अ प्रॉब्लम फॉर दी स्टार्टअप्स, क्योंकि अगर मानो 3 साल तक आपने छूट भी दे दी है टैक्सेस पे, तो 3 साल में भी दैट स्टार्टअप हैजंट बिकम दैट इनफ कि वो इतने सारे रेंज ऑफ टैक्सेस पे कर सके आफ्टर 3 years। ठीक है, तो इन शॉर्ट तो ये हुआ ना कि जितना आपने रिबेट दिया उतना यू आर कलेक्टिंग बाय वेरियस टैक्सेस, राइट? सो दैट इज वन ऑफ द प्रॉब्लम दैट स्टार्टअप्स। वे फॉरवर्ड में आ जाए। वे फॉरवर्ड में कॉमन से पॉइंट्स होते हैं, कुछ स्पेशल पॉइंट्स होंगे तो वी विल सी टू इट। सैंडबॉक्स अप्रोच। सैंडबॉक्स अप्रोच क्या होती है? टू एस्टैब्लिश रेगुलेटरी सैंडबॉक्सेस अलाउइंग स्टार्टअप्स टू टेस्ट इनोवेटिव प्रोडक्ट्स or services in a controlled environment, granting temporary regulatory exemptions. For example, the fintech regulatory sandbox is created by RBI from time to time. Sandbox का मतलब है उन्हें एक enclosed environment दे दिया गया है, right? उस enclosed environment के अंडर में उनको रेगुलेटरी कंप्लायंसेस पे रिबेट दे दिया गया है, उनके ऊपर रेगुलेटरी कंप्लायंसेस नहीं होंगे। हर छोटी छोटी चीज के लिए या हर छोटे छोटे इनोवेशन के लिए दे विल नॉट नीड एन अप्रूवल, राइट? तो इन सारी चीजों से रेगुलेटरी कंप्लायंसेस से दे आर फ्रीड, and under this freedom they have to, in a controlled environment, they are allowed to test their innovative products. ये होता है sandbox approach, right? Then next is policy to enable funding. Creating a comprehensive and precise business policy emphasizing on vision, objectives, and growth potential that can help attract venture capitalists and angel investors.
Innovative funding ideas such as crowdfunding can be encouraged and supported. Regulatory research to keep up with these startups, right? This is a common point. Conducting in-depth research on relevant regulations, seeking legal counsel, maintaining transparency and compliance, and utilizing technology to streamline processes can help to overcome regulatory obstacles. Then moving on to multi-stakeholder approach, it can be utilized to influence policy by joining industry associations, enhancing coordination between government agencies and stakeholders, and advocating for regulatory reform to address issues like the entry-exit problems. ठीक है, तो मल्टी स्टेकहोल्डर अप्रोच लेनी है. कैसे इंडस्ट्री, एकेडमिया, एसोसिएशंस, गवर्नमेंट एजेंसीज, इन सबको मिलाकर या इन सबको साथ लेकर चल रहा है सो दैट योर एंट्री एग्जिट प्रॉब्लम्स आर रिमूव्ड. एंट्री एग्जिट प्रॉब्लम मतलब इजी एंट्रीज भी मिलनी चाहिए स्टार्टअप्स को, रेगुलेशंस उनके ऊपर कम होने चाहिए, and moreover only proportional regulations होना चाहिए. Moreover they should also be provided with an easy exit. That is, if they want to remove themselves from that line, and that would also be easy for them. ठीक है, उनपे several taxes, several compliances नहीं लगने चाहिए. Then IPR protection, since we have seen कि जो startups होते हैं, they are unable to prevent their IPR rights. So expediting patent examination, establishing IPR facilitation centers and awareness generation can enhance the IP protection framework. ठीक है, तो उनके IPR को भी protection provide कराने की जरूरत है. Next आते हैं, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इन्वेस्टर सर्विसेज फंड एंड इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड. ठीक है, अब देखो लॉन्ग में तो वी हैव हार्डली 3 मोर टॉपिक्स, बाकी फिर शॉर्ट्स में भी 18 टॉपिक्स और हैं. तो बची हुई इकोनॉमी एंड एक स्कीम है, एक गवर्नमेंट स्कीम है इसमें इस मंथ की मैगजीन में. तो दैट वी विल बी डीलिंग विद इन द नेक्स्ट लेक्चर. इट्स इट फॉर टुडे बिकॉज इट हैज ऑलरेडी बीन अ लॉन्गर वन. ठीक है, तो मोनोटोनस नहीं बनाना है. We have to study with a lively attitude. ठीक है, बाकी मैगजीन फिनिश करने के बाद आई विल बी प्रोवाइडिंग एज प्रॉमिस्ड दैट 15 to 20 पेज डॉक्यूमेंट. तो आपको वरी नहीं करना है, हर बार आपको इतना 130 पेज डॉक्यूमेंट नहीं पढ़ना है. देख रहे हो आप एक ही बार में हाउ ड्रेनिंग इट इज. तो हर बार तो यू कैन नॉट अफोर्ड टू रीड इट, और अगर आप रीड भी कर रहे हो तो यू आर नॉट गोना रिवाइज इट. ठीक है, और एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि यू आर रिकॉलिंग वॉट एवर यू हैव रेड, और रिकॉल आप तभी कर पाओगे जब आपने ये रिवाइज किया. ठीक है, तो we will be giving that PDF, that will be a 1-pager, वो बिल्कुल helpful होगा. Definitely that will be very helpful. ठीक, तो फिलहाल के लिए bye bye, good night friends, see you in the next video tomorrow, same place, same time. Do like, share and subscribe. Thank you.